Hello students, most welcome in Hortus Botanica, your dream classroom. So today we are here, your botany mentor Dr. Mukesh Kumar, and we will continue our e-batch, yes, that is exploring botany A to Z. We have started class 12, first unit, first chapter, that is reproduction in organism. You all know, I am very happy. So many students and the concerned studied the content and appreciated more. Thanks a lot. So today we will continue our second lecture. Yes. So first lecture we studied, you all remember, right? First lecture we studied. Second lecture we also studied in the last class. Yeah, I think you remember. Today is the turn of, yes, fourth. This is your third chapter where we will continue all the three important topics. And today is very crucial and important class for you, because today we will study vegetative propagation, sexual reproduction, all their three events of sexual reproduction: pre-fertilization, fertilization and post-fertilization, right? So you all know we started first class in as lifespan. We studied, just a recap for you all. So lifespan, we show how in NCERT we studied 16 main examples, we correlated. Then we studied about different lifespan of organism, quiz session, biological clock we studied, questions, your analysis we studied, phases of lifespan, mechanism, interflowering period, Nilakuranji, yes, that flowers after 12 years we studied. Then reproduction we started. I describe कि कैसे reproduction किन किन बातों पे depend करता है. We studied sexual and asexual reproduction, their comparative study. We study about asexual reproduction, their mode like binary fission, budding, multiple fission, right? Gamma cup, gemule. Fragmentation we also studied. We studied special structures of asexual like zoospores, conidia, right? And today is the turn of third lecture. So यदि आपको इन सभी में लगता है आपने क्लास मिस करी है, तो सेकेंड लेक्चर को फिर से आप यूट्यूब पे देखें and then come to the third class. Otherwise no problem, it is an independent topic, पढ़ सकते हैं. फिर भी उसको पढ़ने के बाद you can connect better. Now, so what is vegetative propagation? देखो, by name it is very much clear. Vegetative plants के अंतर्गत दो important parts होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट एंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट. वेजिटेटिव पार्ट्स में क्या आता है, याद करो, रूट, स्टेम और लीफ आते हैं, राइट? तो यदि यही रूट, स्टेम और लीफ ने प्रोपेग्यूल बनाया. प्रोपेग्यूल क्या है? एक बर्ड है जो नोड से निकल रहा है और उस बर्ड के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो पूरे प्लांट्स को डेवलप कर सकता है. तो ये एबिलिटी एक प्लांट्स के अंतर्गत है, उसके वेजिटेटिव पार्ट्स में भी. तो वो जो वेजिटेटिव पार्ट है इसके, रूट, स्टेम और लीफ, ये क्या करेंगे? ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को, अपने ही जैसे स्ट्रक्चर को बना सकते हैं. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज फ्रिक्वेंटली यूज फॉर प्लांट रादर देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. याद है, हमने पढ़ा था. तो अब कोई क्वेश्चन आ सकता है, भाई व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? समझ तो गए हम, कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम डिफाइन ये कर सकते हैं, सी कि वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट्स, मैंने अभी बताया, रूट हो सकता है, लीफ हो सकता है, या स्टेम हो सकते हैं. ये सभी प्रोपेग्यूल को प्रोड्यूस करेंगे. व्हाट इज प्रोपेग्यूल?
वो एक पोर्शन है, फ्रैगमेंट है प्लांट्स पार्ट का, जिसके अंदर एबिलिटी है पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वो मल्टीप्लाई कर सकता है, अपनी जैसी पूरी बॉडी को बना सकता है और प्रोड्यूस द न्यू प्लांट, एंड दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसी को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, चूंकि वेजिटेटिव पार्ट प्रोपेग्यूल्स हो रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं न्यू प्लांट्स एंड इंडिविजुअल्स के अंतर्गत, राइट। आइए देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं इसके। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो प्लांट्स के अंतर्गत ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जो यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं। अभी मैंने बताया कि वो सभी यूनिट्स, वो सभी पार्ट्स जो कैपेबल हैं ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफ स्प्रिंग, वो बिल्कुल नए प्लांट को अपने ही जैसा बना सकते हैं, उन सभी जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के यूनिट कहे जाएंगे, दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। सो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल इज अ यूनिट that has ability to produce new plants and the process is called vegetative propagation. For example, याद कीजिए हमने मॉर्फोलॉजी क्लास 11 में पढ़ा था रनर के बारे में, राइसोम के बारे में, सकर के बारे में, ट्यूबर, ऑफसेट और वल्व के बारे में, राइट। मैक्सिमम आपने देखना ये सभी कैसे हैं, दीज आर अंडरग्राउंड और सब एरियल स्टेम है ये, और पूरे की पूरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर सकते हैं अपने वेजिटेटिव पार्ट से, वे स्टेम वाले पार्ट से। हाँ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो अब क्या है, अब ये है कि ऑब्वियसली ये क्लियर है क्या कि द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स। भाई टू पेरेंट्स कहाँ आया, हमने तो बस एक ही पार्ट्स की बात करी, यहाँ तो सेक्स की बात ही नहीं करी, राइट। हमने पढ़ा भी था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था, विद और विदाउट गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ तो हमने गैमेट फॉर्मेशन की कोई बात ही नहीं करी, और तो यहाँ पर क्या होगा, केवल एक ही पेरेंट तो इन्वॉल्व है, और जब ये एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हुआ दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिपेरेंटल। और आपको पता है जब यूनिपेरेंटल होगा तो रिप्रोडक्शन का जो मोड है वो कैसा होगा, दैट विल बी असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इज इट क्लियर कि भाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल होती है। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल क्या होती है, एक फ्रैगमेंट होती है वेजिटेटिव पार्ट्स की, जो रूट स्टेम लीफ किसी की हो सकती है, बट उसके अंदर वो एबिलिटी होती है, वो पावर होती है कि मल्टीप्लाई करेगा और कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू प्लांट बॉडी। हाँ, न्यू प्लांट बॉडी को बिल्कुल अपनी जैसी बॉडी को वो प्रोड्यूस कर सकता है, एंड दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर नाउ? So see what is the mechanism of this vegetative propagation under asexual reproductive structure। अब देखिए हमने क्या एक मैकेनिज्म में यहाँ समझाने का प्रयास किया आपको कि भाई ये जो मैकेनिज्म्स है आपके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मैकेनिज्म्स की बात हो रही है। तो क्या लिया हमने यहाँ पे कि जो मेन साइट है न्यू प्लांटलेट्स के, प्लांट के छोटे फॉर्म को प्लांटलेट्स बोलते हैं, ये जो न्यू प्लांटलेट्स निकलेंगे वो इनवेरिएबली बिना विवाद के, बिना किसी दूसरे पार्ट की चर्चा किए आप जान जाओ कि वो कहाँ से निकलता है, नोड से निकलता है, और ये प्रेजेंट होते हैं मॉडिफाइड स्टेम्स में डिफरेंट प्लांट्स के, वहां से निकलता है। क्लियर? मैंने क्या बोला, अब फिर से आप समझे कि प्लांटलेट को निकलना। आप देखो डायग्राम देखो, ये जो डायग्राम है आप देखो, ये ब्रायोफाइलम है, ठीक है ना, ब्रायोफाइलम, इसको पतलचूर या पतलचट्टा के नाम से भी जानते हैं। अब आप समझे यहाँ क्या देख रहे हो आप, ये पूरी लीफ है। अब लीफ के ऊपर आप देख रहे हो इसके पास जो मार्जिन है, इसके लीफ के मार्जिन पे जिसको बोलते हैं नॉच प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ लीफ। ये जो नॉच है ना, जैसे सपोज करें आप ये हम लीफ लेते हैं ना, तो ये वाला पार्ट इसका मार्जिनल पार्ट होता है, राइट। तो ये मार्जिनल पार्ट के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड नॉच। अब ये जो नॉच है यहाँ से आप देखोगे कि भाई क्या हो रहा है, ये बिल्कुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है, यहीं से इसका क्या निकल रहा है, रूट निकल रहा है, राइट ना। तो होगा क्या, सबसे ये तो बाद में बनेगा ना, पहले ये जो नॉच है इस नॉच के ऊपर एक बर्ड आएगा। अब ध्यान दो, आपने क्या बनाया, बर्ड, और ये बर्ड इन जनरल कहाँ होता है, एपिकल बर्ड होता है, टर्मिनल बर्ड जिसको बोलते हैं, और एसेसरी बर्ड होता है, राइट ना, एक्सिलरी बर्ड होता है, लेकिन ये तो स्टेम से भी बाहर का बर्ड है।
तो वैसा जो नॉन स्टेम का बर्ड होता है उसे हम एडवेंटिशियस बर्ड बोलते हैं। वैसा बर्ड जो स्टेम को छोड़ के और किसी पार्ट से निकल जाए, स्टेम में भी खासकर टर्मिनल है, एक्सिलरी है, एक्स्ट्रा एक्सिलरी है, ये सारे पार्ट्स उसके हो गए। इसके अलावा और कहीं से, स्टेम से, लीफ से, रूट से, यहाँ से फ्लावर से, यहाँ से भी बर्ड्स निकलती है। दिस ऑल बर्ड्स आर कॉल्ड व्हाट? एडवेंटिशियस बर्ड्स। तो ये भी एक एडवेंटिशियस बर्ड्स है बिकॉज वो नॉच जो लीफ के मार्जिन का पार्ट है वहां से अराइज हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एडवेंटिशियस बर्ड। अब ये एडवेंटिशियस बर्ड ग्रो कर रहा है, आप देख रहे हो पूरी की पूरी यहाँ प्लांटलेट्स हो गई, और ये पूरा का पूरा दिस इज द प्लांटलेट, और यही प्लांटलेट्स क्या होगा? फिर से न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करेगा। तो आपने क्या देखा कि ये जो न्यू प्लांटलेट्स है वो कहाँ से निकल रहा है? ये बर्ड से निकल रहा है। बर्ड है तो वहाँ पे एक नोडल स्ट्रक्चर आया, वो नोडल स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ नोच की बात हो रही है, वहाँ से निकलता है, राइट। इन जनरल क्या होता है? ये तो मैंने फर्स्ट स्टेज बताया कि आपको याद रखना है इन जनरल ऐसा होता है, बट इन जनरल क्या बताया मैंने कि जो नोड होते हैं कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ डैम्प वाटर, डैम्प सॉइल और वाटर। सॉइल जो मॉइस्ट होगा, राइट ना, दैट इज डैम्प सॉइल, राइट। तो सॉइल जब मॉइस्ट होता है उस समय, या नोड जब पानी में केवल है, वहां पे आप देखेंगे कि उस नोडल वाले पार्ट से रूट प्रोड्यूस होती है, शूट प्रोड्यूस होती है छोटी सी, और फाइनली पूरी की पूरी प्लांटलेट्स बाहर निकल जाती है। देखेंगे आगे हम। तो मेन जो मैकेनिज्म यहाँ हमारा ये समझना है कि भाई क्या समझना है कि हमारे पास जो मुख्य रूप से ये स्ट्रक्चर्स होंगे वो नोड होते हैं, स्टेम पे पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी में, और ये नोड हो गया, राइट, दिस आर नोड, ये नोड्स हो गए, और दो नोड की बीच की दूरी, यस, दिस इज कॉल्ड इंटरनोड। आप देख रहे हो ये क्या हो गया? इंटरनोड हो गया। तो ये जो इंटरनोड है ये सभी इंटरनोड दो नोड के बीच में पाया गया, और इसी नोड के ऊपर हुआ कि भाई बर्ड्स निकलेगा, एंड जब ये पार्ट या तो पानी में हो या डैम सॉइल में हो तो इसको एक न्यूट्रिशन मिल जाती है। जब न्यूट्रिशन मिलेगी, एनर्जी मिलेगा, इसकी फूड सप्लाई कंप्लीट हो जाएगी, तो इसके अंदर से प्रोपेग्यूल्स निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ द बर्ड्स। वो बर्ड फिर न्यू प्लांटलेट्स को ऊपर बियर करेगा, रूट को बियर करेगा, एंड फाइनली द कंप्लीट plantlet will develop. Is it clear? So this is the mechanism of asexual reproductive structure, that is vegetative propagule, कैसे निकलती है, कैसे डेवलप होती है, राइट। और इसका जो एप्लीकेशन है वो मेनली हमारे गार्डनर्स और फार्मर्स करते हैं। क्यों करते हैं, किस लेवल पे करते हैं? ये कमर्शियल एप्लीकेशन, कमर्शियल प्रोपेगेशन करते हैं, अधिक अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं ताकि हमें बेनिफिट हो सके हमारे किसान भाइयों को, और गार्डन लगाने वाले जो गार्डनर्स होते हैं, राइट ना, उनके लिए जो नर्सरी में हमारे गार्डनर्स होते हैं, आप जाते हो रास्ते से क्रॉस होते, रोड के किनारे नर्सरी लगी होती है, वहाँ जाके आप देखते हो तरह तरह के प्लांट्स आपको देखते हैं। वो लोग भी इस मेथड को डेवलप करते हैं और प्लांटर्स बना के रखते हैं, आप उसको लाते हो फिर अपने गमले में लगा के ग्रो कराते हो, राइट ना, वेरी कॉमन प्रोसेस। नाउ अभी मैं बात कर रहा था कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रोपेग्यूल्स हो सकते हैं। सी, दिस इज द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, यस, दिस इज द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है इन एंजियोस्पर्म्स में। हमने बात करी अंडरग्राउंड स्टेम्स की, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम में बहुत सारे आते हैं। यहाँ जो बात करी गई है ये ट्यूबर की बात की गई है, ये आपने पढ़ा होगा स्टेम ट्यूबर। जो स्टेम ट्यूबर होता है ये क्या है, नाम से स्पष्ट है, ट्यूबर। ट्यूबर का मतलब ही होता है इररेगुलर, यहाँ पे कोई नियमित आकार नहीं होगा। इसीलिए आप देख रहे हो ये आलू का कोई शेप आप कोई ना तो सर्कुलर बोल सकते हो, ना ही कोई पर्टिकुलर एक शेप बोल सकते हो, राइट। इसीलिए हमने इसे क्या कहा, ट्यूबर बोला, चूंकि इरेगुलर साइज का। अच्छी बात क्या है, अब याद करो, आप आलू घर में भी देखते हो कि जब छोड़ देते हो कुछ दिनों तक, तो आप देखो यहाँ पे ये जो होते हैं ना, ऐसे ऐसे इस पर लगे होते हैं, बर्ड्स होते हैं, नोट्स होते हैं, और यहीं पे ये देखो बर्ड्स है। ये जो बर्ड्स आप देख रहे हो, दिस बर्ड्स आर कॉल्ड आइज, राइट। तो आइज जो है ये हमारे फार्मर्स लैंग्वेज है, बट हमारा जो साइंटिफिक लैंग्वेज है उसको हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं, या बर्ड आइज भी बोल सकते हैं, आई बर्ड्स है। यही बर्ड्स जब इसको भोजन मिल जाती है
तो ये क्या होता है, जर्मिनेट करता है और ग्रो कर जाता है, राइट ना। खेतों में भी जब आलू लगाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, क्यारी बनाते हैं, ऐसे लिया और ऐसे इस तरीके से रिजेस एंड ऐसे बनाते हैं, राइट। और ये मिट्टी का जो ऊपर टीला बनाया हमने, ये टिप बनाया, ये रिज बनाया, और यहीं पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस पार्ट को, जैसा जहाँ पे बर्ड्स होता है इसको काटा, इस पार्ट को जहाँ बर्ड्स होते हैं, इस पार्ट को जहाँ जहाँ हमें बर्ड्स दिखाई देगा ऐसे करके काटे। मतलब इस आलू को यदि हमने ले लिया तो इस आलू को लेके हमारे पास आप देखो है ना, इस तरीके से कितने हम 1 2 3 4 बहुत सारे पार्ट्स लिए, और यहाँ पर ये लेके ये हम आपको क्या करेंगे, इस तरह से ये लगा देंगे इस पूरे पार्ट्स को, और यहाँ से ग्रो करेगा, राइट ना। तो इस तरीके से आप देखोगे इसकी ग्रोइंग आएगी, राइट। और ये फिर नया प्लांटलेट बना देगा। सो यही बर्ड है जो क्या करेगा, फिर से बनाएगा न्यू प्लांटलेट्स। यस, ये प्लांटलेट्स बनाएगा, नया बंदी बनाएगी इससे। दूसरा हमने बताया राइजोम। यस, राइजोम से तो परिचित है, ये जिंजर में होता है। अदरक की बात की जा रही है। ये जो होता है इसकी विशेषता है कि यहाँ पे ये ट्रांसवर्स, ये जो लॉन्ग, ये आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ इसकी ज़्यादा होती है रादर दिस वर्टिकल ग्रोथ, राइट ना। और आप देख रहे हो इसके नोट्स हैं, इसी नोट से आप देखो यहाँ पे बर्ड्स निकले हुए हैं, और यही बर्ड्स क्या करेगा, फिर से न्यू प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन कर देगा। तो अगेन ये बर्ड्स भी क्या हो गए, ये प्रोपक्यूल्स हो गए। क्लियर। ये दोनों डायग्राम आपके एनसीईआरटी में हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है लेबलिंग करने के लिए। तो याद रखना है, ये आइज है, ये जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स है, राइट। ये पोटैटो की बात करी है, ये स्टेम ट्यूबर है, ये दोनों अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं। क्लियर। नाउ अब वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ सब एरियल स्टेम, और ये स्टेम जो है वो ऑफसेट का है। याद कीजिए, मॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा होगा आइकॉर्निया क्रैसिप के बारे में। हाँ, वाटर हायसिंथ, इसको बोलते हैं साइंटिफिक नेम आइकॉर्निया क्रैसिप। क्या देखा आपने, ये बिल्कुल पानी है, ये देख रहे हो ना, ये दिस इज द वाटर, पानी में है, ये एक्वेटिक कंडीशन से पानी है। और ये जो पानी में आप देख रहे हो, तो ऊपर में ये क्या है, ये एयर है। सो दिस इज एयर है, और ये क्या है, वाटर हो गई। तो इसकी हाफ पार्ट एयर में, हाफ वाटर में है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सब एरियल। अब समझ में आया सब एरियल क्यों कहा आपने इसको। नाउ ये जो पार्ट आप देख रहे हो, इसी पार्ट को जो अंडरग्राउंड सब एरियल, ये सब एरियल स्टेम है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड ऑफसेट। अब ये ऑफसेट के बारे में तो आप जानते हो पहले से कि भाई ये एक नोड से निकलता है और दूसरे नोड तक पहुंचता है, ये आपको पता है, राइट। ऑफसेट और शक्कर आपने पढ़ा था, याद कीजिए। हाँ, यहाँ पे आपको क्या समझना है, जो अपने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसे कहा गया टेरर ऑफ बंगाल। यस, बंगाल के लिए ये आतंक बना हुआ है, ये आतंकवादी पौधा है। और ये आतंक हमने, मतलब इंडिया वालों ने खुद से लाया। हाँ, जैसे बोलते हैं ना, मोहिनी चाल में फंस जाना और फिर बर्बाद हो जाना, तो बस यही हाल हुआ इसके साथ भी। ये जो प्लांट है, ये मोस्ट इन्वेसिव वीड है। वीड का मतलब आप जानते हो, दिस इज द अनवांटेड प्लांट्स, राइट। इन्वेसिव है, इन्वेसिव का मतलब यदि वो आ गया तो दूसरे जो नेबरिंग प्लांट्स है उस पर वो अटैक करेगा, मतलब उसके ग्रोथ को रोक देगा। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो सपोज टू बी द स्मूथर क्रॉप। स्मूथर है, खुद आ गया, दूसरे किसी प्लांट्स को आने नहीं देगा, राइट। और ये ग्रो करता है कहाँ, स्टैंडिंग वाटर। स्टैंडिंग को ही स्टैग्नेंट वाटर भी बोलते हैं। तो स्टैग्नेंट वाटर जो रुकी हुई पानी है, वहाँ पे ये पाया जाता है। इसको हम लोग दूसरा एक लेंटिक, एक लोटिक बोलते हैं। लोटिक मीन्स बहता हुआ पानी, लेंटिक मतलब रुकी हुई पानी। तो इसी के लिए दो टर्म आप यूज कर सकते हो, एक लेंटिक और दूसरा स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट तो टर्मिनोलॉजी यूज करके आपको परेशान किया जा सकता है। बात वही हो गई, स्टैंडिंग वाटर को ही लेंटिक वाटर बोल सकते हैं और स्टैग्नेंट वाटर बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या होता है, जब इसकी पूरी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आप देखोगे कि जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाएगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा धीरे धीरे। तो क्या देखेंगे, जब डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो उस
वाटर में रहने वाले जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे फिशेज हैं या दूसरे एक्वाटिक प्लांट्स भी हो सकते हैं, धीरे धीरे उन्हें तो वाटर ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, तो ऑक्सीजन की कमी में डायरेक्ट आपको दिखाई देगा मछलियां तो मरने लगेंगी, और भी जो प्लांट्स और दूसरे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी डेड होने लगेंगे, और पूरा का पूरा वाटर बॉडी जो है वो बर्बाद हो जाएगा, हाईली पॉल्यूट हो जाएगा। और ये सीन बहुत ज़्यादा देखा गया है कहाँ? बंगाल में। दैट्स वाई इसको बंगाल में बंगाल का आतंक कहा जाता है, टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, राइट। तो अब हमने कहा कि ये क्या करता है, ये देखो मैंने लिखा ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विच लीड डेथ ऑफ फिशेस, राइट। ऑक्सीजन के बिना फिश कैसे सर्वाइव करेगी, उसे भी तो रेस्पिरेशन करना है। अब रही बात कि भाई इस आफत को, इस आतंक को लाया क्यों गया, कैसे आया इंडिया में? तो एक्चुअली देखो, आप देख रहे होगे इसके जो लीफ हैं, एक कटीले लीफ, ऐसा लग रहा है जैसे, आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? हाँ, ये सुंदर लग रहा है, बॉडी लीफ का जो शेप है बड़ा प्यारा है, डिफरेंट लग रहा है, ऐसा तो प्राय किसी दूसरे लीफ पौधे में होता नहीं है। ऐसा ही नहीं, इसके लीफ फ्लावर नहीं दिखाया हमने, इसकी फ्लावर भी बहुत ब्यूटीफुल होती है, बहुत ब्यूटीफुल कलर की इसकी फ्लावर होती है। दैट्स वाई दो चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट कर गया, एक तो इसकी लीफ और दूसरी इसकी बहुत ही सुंदर लार्ज साइज की फ्लावर। तो फ्लावर का जो कलर है ब्यूटीफुल और लीफ की जो शेप है, ये दोनों चीज़ों के कारण लोगों ने कहा यार इसको ले चलते हैं, इंडिया में इंट्रोड्यूस करते हैं, इतना सुंदर पौधा है ये। उनको क्या पता था जब ये आएगा तो दूसरे को मारना शुरू कर देगा, एंड इट विल बिकम अ इन्वेसिव वीड, इन्वेसिव प्लांट बन जाएगा ये हमारा, और इससे बेनिफिट कुछ नहीं होना हमने। तो हमने क्या देखा, क्या हुआ, इंट्रोड्यूस टू इंडिया। क्वेश्चन आता है भाई कि इंडिया में क्यों लाया गया? इसलिए लाया गया, अभी बताया मैंने, ब्यूटीफुल फ्लावर्स और शेप ऑफ लीव्स के कारण लाया। और इतनी तेजी से इसकी प्रोपेगेशन होती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दैट इज द फेनोमेनल रेट, बहुत तेजी से बढ़ता है, इतना तेजी से बढ़ जाता है कि आप चाहो कि जल्दी उसको अपरूट करके बाहर फेंको, आप फेंको फिर तुरंत विद इन वीक पूरा फैल जाएगा। दैट्स वाई लोग छोड़ देते हैं। अब छोड़ दोगे तो उसकी पूरी संख्या इतनी ज़्यादा मैसिव ग्रोथ हो जाएगी कि पूरा ऑक्सीजन को ड्रेन कर जाएगा, एंड अदर जो उसी हैबिटेट में रहने वाले जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी डेथ हो जाएगी, हाईली पॉल्यूटेड हो जाता है वो एरिया, राइट। सो मैंने कहा प्रोपेगेट जो करेगा वेजिटेटिवली करेगा, और इसकी रेट फेनोमेनल होती है, और ये स्प्रेड करता है ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट राइड ऑफ देम। उसको निकालना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए तो ये आतंक है, जल्दी हटा नहीं सकते इसको। तो इज इट क्लियर? क्वेश्चन क्या क्या आएगा इससे कि भाई टेरर ऑफ बंगाल किसको कहा गया? तो ये कहा गया आइकॉर्निया क्रैसिप को कहा गया, वाटर हाइसिंथ को कहा गया। कैसा स्टेम है? अंडरग्राउंड स्टेम है, सब एरियल स्टेम है या एरियल स्टेम है, बिल्कुल याद रखना है, सब एरियल स्टेम है। क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कैसा वीड्स है, तो इन्वेसिव वीड्स है। कैसे पानी में पाया जाएगा? रुके हुए स्टैंडिंग लेंटिक या लेंटिक या स्टैंडिंग या स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाएगा ये, राइट। क्या करता है? ऑक्सीजन को ड्रेन कर ले रहा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए आफत बन के चुका है। क्यों लाया इस आफत को भाई मन मोह लिया इसने, राइट। और किसके कारण ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया? ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीफ के कारण। इज इट क्लियर? गुड। आइए बात करते हैं, चलो ये एनसीईआरटी के मैंने क्वेश्चंस नहीं छोड़े हैं ताकि आपको लगे कि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो देखो ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए इसको डिस्कस भी कर ले। क्वेश्चन बोलता है कि आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, सुगर कैन, बनाना, जिंजर, डालिया आर कल्टिवेटेड। क्या आपको पता है ये सारे ऐसे पौधे हैं जिस खूब कमर्शलाइजेशन होती है। आलू के बिना तो हमारी सब्जी पूरी ही नहीं होती, आपको पता है। तो इसकी भी ज़बरदस्त क्या होती है, कल्टीवेशन होती है। कैसे होती है? अभी आपने देखा बर्ड्स निकालते हैं, क्यारियों में लगा देते हैं, पूरा हो जाता है। शुगर केन, यस, ये शुगर केन हम देखेंगे, इसकी भी बहुत अच्छी कल्टीवेशंस होती है, राइट। और ये स्टेम कटिंग की तरह इसका आप कह सकते हो उसकी ग्रोथ होती है, राइट। उसके अलावा हमारे पास बनाना आ गया, इसका शक्कर है हमारे पास। राइजोम्स होते हैं, ये जो ग्रो कराते हैं, हम राइजोम को ग्रो करते हैं, शक्कर ग्रो होता है इसके अंतर्गत। जिंजर अभी आपने देखा राइजोम के तहत।
डालिया भी आपको पता है, तो यस आप बोल सकते हो, बिल्कुल अवेयर हैं, बहुत कॉमन पौधे हैं, हम खेतों में खूब देखते हैं इसको, राइट। दूसरा कहता है हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स कॉल्ड आइज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर फ्रॉम द राइजोम ऑफ बनाना एंड जिंजर। बिल्कुल देखा है, नहीं देखा है तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पोटैटो का तो अभी मैंने आपको दिखा दिया, राइट। रही बात राइजोम की, तो राइजोम बनाना का आपने नहीं देखा था, जिंजर का तो आपने देख लिया, ये भी मैंने दिखा दिया, बनाना का भी अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो बिल्कुल हमने देखा है, नहीं देखा है तो अभी देख लेंगे एक प्लांट्स का। ये रहो आगे आपका जो मैं बनाना की बात कर रहा था, ये देखिए इन्होंने क्वेश्चन में पूछा गया था पोटैटो के बारे में। पोटैटो ये हमारे पास ये क्या है, ये दिस इज योर स्टेम ट्यूबर, ये तो पढ़ चुका हमने। दूसरा क्वेश्चन था शुगर केन के बारे में, ये कलम होता है। कलम समझते हैं क्या होता है? कलम आप ये समझे, देखो मैंने ये शुगर केन का कलम की बात करी है। कलम क्या होता है अब ध्यान दो, जैसे ये होता है ना, ये आप देख रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे ये आता है, ये दिस इज योर हार्ड स्ट्रक्चर, ये होता है, ये भी हार्ड स्ट्रक्चर, नोड गांठ होते हैं और बीच में इंटर नोड होता है, राइट। ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट ना। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इन जनरल, ये जो इंटर नोड है ये सॉलिड भी हो सकता है और हॉलो भी हो सकता है। तो ये जो सॉलिड कंडीशन है ये शुगर केन में है, वही हॉलो कहाँ होता है, बनाना में, बैम्बू में होता है, देखोगे ना बैम्बू बांस के पौधों में। तो यहाँ पे आप जो शुगर केन देख रहे हो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कलम। यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखो ये गांठें पड़ी हुई हैं, देख रहे हो ना, यहाँ से नीचे निकल रहा है ये, और ये सभी गांठें हैं यहाँ पे, राइट। और ये यहाँ बहुत अच्छी होती है, एक बार कट गया आप क्या करते हो, आप यहाँ से इसको नीचे से काट लेते हो, तो काट तो लिया, तो ये है क्या अभी भी नीचे पड़ा हुआ है, तो ये है जो बर्ड्स होंगे फिर ग्रो कर जाएंगे, फिर से नया ग्रो कर लेंगे। तो एक बार आप लगाते हो फिर वहीं से काटते हो, फिर वो नए नीचे से ग्रो हो जाता है, फिर लगाते हो फिर काटते हो, फिर नीचे से ग्रो होता है। मतलब एक बार आपने लगा दिया तो आप उसी जगह से कितनी बार चाहो तो कल्टीवेशन कर सकते हो। सो दिस इज वेरी गुड कमर्शलाइजेशन ऑफ शुगर केन, राइट। एटलीस्ट 2 बार फसल जरूर लोग निकाल लेते हैं एक सीजन में। सो दिस इज वेरी कमर्शियल। हाँ, नाउ बनाना की बात कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब पहली बात तो बनाना में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, हमारे यहाँ पर हम लोग बोलते हैं ये शक्कर है या राइजोम है, राइट। तो आपने याद करो हमने पढ़ा था, राइट। इसके पहले वाले में भी देखा था कि ये यहाँ पे जो 12th क्लास के स्टेटमेंट है यहाँ पे इन्होंने राइजोम में रखा हुआ है, 11th वाले में इन्होंने क्या रखा हुआ है, शक्कर में रखा हुआ है। आपको ये भी कंफ्यूजन होता है सर किसको माना जाए। इनफैक्ट समझने की बात है कि आप क्या ले रहे हो, राइट ना। एक ही स्ट्रक्चर्स में 2 नहीं 3 पार्ट्स हो सकते हैं, इसको मैं एलिब्रेट करूँगा अभी। डालिया का तो बड़ा सिंपल है, फेसिकुलेटेड रूट है, आप देख रहे हो डालिया में फेसिकुलेटेड रूट है। फेसिकल्स आपको पता है ये ट्यूबर होता है, इरेगुलर होता है। जब यही फेसिकुल अकेले नहीं हो के ग्रुप में पाया जाता है ना, इन ग्रुप, तो ये ग्रुप में इन टफ होता है तो वही फेसिकुल होता है। तो ये बिल्कुल सही है आपका डालिया में, कोई दिक्कत नहीं। डायग्राम आप देख रहे हैं इस तरह से, ये देख रहे हो एक कॉमन पॉइंट है और यहाँ पर ग्रुप में सब पाए जा रहे हैं, राइट। आइए जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग है स्टेटमेंट उसको समझते हैं, दैट इज बनाना। अब देखो आप ये बनाना में आप देखो इसमें एक तो स्ट्रक्चर कॉर्म दे दिया जो अभी चर्चा नहीं हुई थी। कॉर्म का कंडीशन है कि वो क्या होता है, बिल्कुल अंडरग्राउंड होता है। पहली बात उसमें लेंथ जो होती है ज़्यादा ग्रो करती है इसकी, और इसकी जो ये चौड़ाई होती है कम होती है, बिल्कुल अपोजिट होता है राइजोम की तरह, राइट। तो इन्होंने कहा कि ये स्ट्रक्चर पूरा देखोगे तो ये कॉर्म की तरह लगेगा, लेकिन इसी कॉर्म के अंदर ये जो पार्ट आप देख रहे हो यहाँ वाला पार्ट ऐसे, इसको हमने क्या कहा जाता है, इसको राइजोम कहते हैं। यस इट इज राइजोम। अब ये राइजोम क्या है, देखो यहाँ लिखा है अ बनाना ट्री एक्चुअली अ लार्ज हर्ब। बनाना एक लार्ज हर्ब है, इज अ काइंड ऑफ प्लांट दैट ग्रो फ्रॉम द सोलन अंडरग्राउंड स्टेम। राइजोम प्रोड्यूस रूट्स, राइजोम से नीचे देखें रूट्स निकल रहा है, राइट। प्रोड्यूस ग्रोइंग डाउन एंड शूट ग्रो अप इनटू अ प्लांट। और ये देखो रूट नीचे, तो राइजोम मैंने कहा ये देखो ये राइजोम हो गया पूरा का पूरा। अब इस राइजोम में का नीचे रूट निकला और यहीं पे एक शूट बाहर निकलता है। यस ये जो शूट बाहर निकलता है ये देखो तलवार की तरह निकलता है, इसको बोलते हैं शोड शक्कर। शोड मीन्स तलवार।
तो ये शक्कर की तरह दिखता है, इसलिए कहा शोर शक्कर। तो जो स्ट्रक्चर बर्डिंग स्ट्रक्चर है, जर्मिनेटिंग बर्डिंग स्ट्रक्चर है, दिस इज योर शक्कर। पूरा जो स्टॉक आपने लिया, दिस इज द राइजोम। बात समझ रही ना? अब समझ में आया? कन्फ्यूजन दूर हो गई कि राइजोम कैसे है और कैसे शक्कर दोनों लिखा आपने। तो हम लगाएंगे किसको? लगाएंगे तो राइजोम को, लेकिन जो ग्रो करता है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल के फॉर्म में जो आगे बन रहा है वो कौन हो रहा है? शक्कर हो रहा है। इसीलिए 12 क्लास में हमने इन्होंने बताया था, वहाँ पढ़ाना था आपको क्या? सब एरियल स्टेम के बारे में पढ़ाना था उनको। तो सब एरियल स्टेम तो हम बताएंगे। तो यहाँ पे राइजोम तो एरियल अंडरग्राउंड स्टेम होता है, इसको तो हम बोल नहीं सकते इसको। तो इन्होंने क्या है, ये होता है कि भाई ये ऐसे आया हॉरिजॉन्टल, फिर ये ऑब्लिकली बाहर निकल गया, ये होता है हमारा सब एरियल स्टेम। तो सब एरियल स्टेम में कौन आ जाएगा? शक्कर आ जाएगा। दैट्स वाई यहाँ हमने वहाँ पर शक्कर पढ़ा था, चूँकि शक्कर ऐसे ग्रो करती है। लेकिन हमने लगाया क्या? पूरा जो पार्ट लगाया वो तो राइजोम का लगाया। तो नए प्लांट्स यदि आपको बनाने हैं तो आपको ग्रो किसको करना है? किसको लगाना है मिट्टी के अंदर? तो लगाना तो राइजोम को है। दैट्स वाई एनसीईआरटी ने क्लास 12 वाले में यहाँ राइजोम रखा और क्लास 11th में उन्होंने शक्कर की चर्चा करी। आई थिंक डाउट वेरी मच क्लियर हो गया होगा। लेकिन मजे की बात जानिए, ये स्टेम जो है ये हम मानते हैं कि ये एक प्रकार का फॉल्स स्टेम है, कि ट्रंक जैसा दिख रहा है, फिर भी ये ट्रंक जो है वो लीफ से बने होते हैं। मेनी लेयर्स ऑफ कंसेंट्रिक लीव्स होता है इसके ऊपर। तो नया प्लांट कहाँ से निकल रहा है? नया प्लांट शक्कर से निकल रहा है। ये देखा, ये एक प्रकार का हर्ब है, लार्जेस्ट हर्ब के रूप में हम मानते हैं इसको। सो दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट बनाना। आई थिंक वेरी मच क्लियर फ्रेंड्स। सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया कि क्यों राइजोम बोला, क्यों शक्कर का हमने इनको, कैसे उसका ग्रोथ होता है, किसको शॉर्ट शक्कर के नाम से जानते हैं, राइट? लार्जेस्ट हर्ब कौन है? क्लियर नाउ। इसीलिए इसको सूडो हम बल्ब सूडोस्टेम के नाम से इसको जानते हैं, राइट? सूडोस्टेम। नाउ अब देखो, ये भी आपके एनसीईआरटी का डायग्राम, ये तो हमने अभी पढ़ लिया कि किस तरीके से ये एडवेंटिशियस बर्ड्स होंगे। और एडवेंटिशियस बर्ड जो होंगे ये लीफ के नोच वाले पार्ट से यहाँ रूट्स निकलेंगे, एडवेंटिशियस रूट होगा, ऊपर में ये शूट बनेंगे और फिर इससे हमारा क्या होगा? न्यू प्लांटलेट बन जाएगा, राइट? नाउ अब ये देखिए दूसरा स्ट्रक्चर आता है बल्बिल का। ये बल्बिल क्या होता है? देखो एक्चुअली जो बल्बिल है, राइट, इस बल्बिल के बारे में यदि हम समझे तो मानते हैं ये भी एक प्रकार का प्रोपेग्यूल है। प्रोपेग्यूल है, राइट? ये भी एक प्रकार का पेनेरेटिंग स्ट्रक्चर है। पेनेरेटिंग स्ट्रक्चर है, ये फ्लैशी होता है, राइट? और ये अभी जो बल्बिल की चर्चा करी है ये टेरेस्ट्रियल है। तो टेरेस्ट्रियल है कौन? बल्बिल। यहाँ पर किस केस में टेरेस्ट्रियल देखा? एगैब में देखा। ये फ्लोरल बर्ड्स होता है, यहाँ पर फ्लोरल पार्ट से बर्ड निकल रही हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो ऑक्सैलिस भी आता है। ऑक्सैलिस जो है वो भी बल्बिल का प्रोडक्शन करता है। वो हमारा कौन होता है? तो वो हमारा फोलियर बर्ड का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो, डायस्कोरिया। वहाँ से भी यहाँ भी आप देखोगे डायस्कोरिया में भी बल्बिल पाए जाते हैं। सो दिस आर बल्बिल। एक और स्ट्रक्चर इसमें आता है, एम्स में आया था, व्हाट डू मीन बाय टूरियन। टूरियन भी एक प्रकार का स्पेशल बर्ड्स होता है और ये स्पेशल बर्ड भी प्रोपेगेटिंग है, पेनेरेटिंग है। किसकी तरह? यहाँ पर प्रोपेगेटिंग एंड पेनेरेटिंग है, प्रोपेगेटिंग और पेनेटिंग है। एक अच्छी चीज़ क्या है? ये भी फ्लैशी है, लेकिन कंडीशन कैसा है? ये एक्वेटिक बर्ड है। ये एक्वेटिक बर्ड है, यहाँ से नए प्लांट्स आते हैं। एंड दिस इज फाउंड इन पोगोनेटम एंड यूट्रिकुलेरिया। दो प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो याद रखना, एक टूरियन हो गया और एक बल्बिल हो गया। इसके बर्ड जो होंगे वो भी पेनेरेटिंग हैं, ये भी प्रोपेग्यूल बनाएंगे लेकिन एक्वेटिक कंडीशन में है। जबकि नॉर्मल जो बर्ड्स हम जो बोलते हैं हम, राइट, वो जो बल्ब है वो पेनेरेटिंग है, प्रोपेग्यूल है, बिल्कुल कॉमन कैरेक्टर। लेकिन ये फ्लैशी होते हुए टेरेस्ट्रियल है, ये भी फ्लैशी होते हुए कैसा है? एक्वेटिक है। सो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन टर्ल एंड बल्बिल। गॉट द पॉइंट? तो ये दोनों स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको। नाउ अब आइए बात हम शिफ्ट करेंगे कैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मूव करता है कहाँ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए।
तो ये है हमारा शिफ्टिंग, किसके शिफ्टिंग, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शिफ्ट हो रहा है किसके ऊपर, किधर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या कारण है कि असेक्सुअल सेक्सुअल में शिफ्ट होते जा रहा है, राइट ना। आपको बताया है मैंने कि जो जनरली जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होती है वो कैसा होता है, वो फेवरेबल कंडीशन में होता है, भोजन की कमी नहीं होगी, इन्वायरमेंटल सपोर्ट होगा, सारी चीज़ें सपोर्टिव होंगी। लेकिन जब सपोर्ट विड्रॉ होने लगता है तो उसको ऐसा होता है यार, अब जब फैसिलिटी कम हो जाएगी तो हमें अपने ज़रूरतों को, हमें अपने खर्च को, हमें अपने एनर्जी के वेस्टेज को कम करना पड़ेगा और भी एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी। उस समय जब उन्हें ऐसा लगता है कि एनर्जी कम पड़ रही है तो वो क्या करते हैं, दो सेल आपस में फ्यूज हो जाते हैं ताकि एक दूसरे के एनर्जी को कंपनसेट करके सरवाइव कर सके इन एडवर्स कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन। बात समझ आ रही है। तो बोलते भी है कि भाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सबसे पहले आया वो कैसे आया। अब समझो जो ओरिजिन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे आया, मानते हैं जैसे मान लो ये एक सेल था, ये एक सेल है, राइट। अब क्या हुआ, जब फेवरेबल कंडीशन होगा तो यही फिर से अपने जैसा ये बना लेगा, यही फिर से अपने जैसा बना लेगा। ये कब होगा, जब ये चीज़ें कैसी होंगी, फेवरेबल कंडीशन में होंगी। लेकिन कहा जब चीज़ें अनफेवरेबल की तरफ जाएंगी, जब ये लगेगा कि भाई अनफेवरेबल कंडीशन है तो इतने तो सारे फैसिलिटी इसको भी नहीं मिलेंगे, इसको भी नहीं मिलेंगे, तो ये दोनों सेल क्या करेंगे, ये चाहेंगे पहले तो इनका साइज छोटा हो जाएगा पहले से, चूँकि फेवरेबल कंडीशन नहीं है, राइट। भोजन आप नहीं दोगे क्योंकि बॉडी सूख जाएगी तो ये साइज छोटी हो जाएगी उसकी। फाइनली क्या होगा, ये दोनों और कंपनसेट होके एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाएंगे। पहले साइटोप्लाज्म का फ्यूजन, साइटोकाइनेसिस होगा, फिर कैरियोकाइनेसिस होगा और ये दोनों मिलके एक हो जाएंगे। तो ये समय की मांग थी कि ये दोनों एक हो गए। लेकिन यदि आप सही से देखो तो हुआ क्या, हुआ ये कि ये n था इसके पास, उसके पास भी n था, दोनों मिलके 2n बना दिया इन्होंने। इसका मतलब यहाँ तो यार फर्टिलाइजेशन हो गई। अब ये फर्टिलाइजेशन बोलते हैं ना, तुमने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया। रियली इसे टाइप ऑफ एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट तो अनफेवरेबल कंडीशन में ही होता है। तो यहाँ भी आप क्या देख रहे हो कि एक सेल जो था, जब चीज़ें अनफेवरेबल कंडीशन आने लगी तो धीरे धीरे वो अपनी, इसको बोलते भी हैं सेक्स हंगर थ्योरी बोला जाता है कि भाई सेक्स उसी समय होगी जब हंगरनेस सेल के अंतर्गत आएगी, और जब सेल के अंदर हंगरनेस आएगी तो उसकी कॉम्पनसेशन के लिए दो सेल आपस में फ्यूज करते हैं, एंड देन इट इज द shifting from asexual reproduction to sexual reproduction just before onset of the adverse condition, unfavorable condition। समझ में बात आ गई। और ये सीन बड़ा अच्छा शुरू में देखा गया था, किस प्लांट के ऊपर ऐसा लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देखा, तो वो एल्गी का प्लांट, याद कीजिए क्लेमाइडोमोनास पे लोगों ने ऐसा देखा, क्लेमाइडोमोनास है ना। और यही क्लेमाइडोमोनास जो है वो यूनिसेलुलर है, मोटाइल एल्गी है, और इसी पे देखा गया था लोगों ने ओरिजिन ऑफ सेक्स की कहानी पढ़ी थी, ओरिजिन ऑफ सेक्स। तो ये बात समझ आ गई कि सेक्स की ओरिजिन कैसे हुई, कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लोगों ने रिकॉर्ड करा, इस चीज़ से देख के समझ में आया। तो इसी तरीके से हम देखें कि क्या लिखा हमने कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का ऑर्गेनिज्म का, जहाँ पे आप देखो ये रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनिज्म में तो आराम से हो जाता है जैसे एल्गी और फंजाई में, लेकिन वो शिफ्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कब, जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। अभी बताया एडवर्स कंडीशन जब आएगा, अनफेवरेबल कंडीशन जब आएगी, उसके पहले वो क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। गॉट द पॉइंट, राइट। नाउ यही दो क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनेबल्स दिस ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ये एनेबल कैसे करता है कि भाई वो जरूरतों को कम कर देता है, हंगरनेस जो है वो कंपनसेट होती है एक दूसरे की, और इस तरीके से वो सर्वाइव करता है उस अनफेवरेबल कंडीशन में भी। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर दिस कंडीशन, क्यों फेवर करा, क्योंकि भाई वो क्या होगा, जरूरतें कम हो जाएंगी, दो सेल की कमी एक सेल के अंतर्गत कंप्लीट हो रही है, तो इस तरीके से अनफेवरेबल कंडीशन में कम से कम चीज़ों को लेके वो काम कर रहा है, दैट्स वाई ये फेवर्ड है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो चीज़ें बदल सकती है, राइट। नाउ
यस, तो हम लोग शिफ्ट कर चुके हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर हमने देखा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, प्रोपेगेशन, नाउ द टर्म ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अब बात समझे, नाम से स्पष्ट है, पहले भी हमने देखा था कि वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होगा, मेल गैमेट्स बनेंगे, फीमेल गैमेट्स बनेगी ऑफ द अपोजिट सेक्स, राइट, और फाइनली क्या होंगे, दोनों फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगी सक्सेसफुली, फिर ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, और प्रोसेस स्लो है, कॉम्प्लिकेटेड है, एलेबरेटिव है, ऐसा देखा था हमने ये भी देखा था शुरू में कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। हमने देखा था एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पे डिपेंड कर सकता है, इंटरनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर सकता है, फिजियोलॉजी पे डिपेंड कर सकता है, और बहुत सारा की चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है, राइट। तो इसी को एक समराइज किया हमने फिर से कि भाई व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, involve formation of male and female gametes either by the same individual होगा तो bisexual body हो जाएगी, और by the different individual होगा तो unisexual body होगी of the opposite sex, right। ये elaborative process है, complex है, लेकिन बहुत slow process है। जबकि हमने पढ़ा था कि जो असेक्सुअल होते हैं वो सिंपल और रैपिड प्रोसेस होती है, जबकि ये सिंपल नहीं, कॉम्प्लिकेटेड और स्लो प्रोसेस है, राइट। अपोजिट गैमेट्स बनेंगे मेल और फीमेल्स के ताकि जाइगोट का फॉर्मेशन हो सके, और यही जाइगोट डेवलप करेगा, बताएगा कि किस फॉर्म में ऑर्गेनिजम्स को डेवलप होना है। तो जाइगोट का जो डेवलपमेंटल पैटर्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस बॉडी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होने वाला है। तो मेल और फीमेल जो गैमीट्स है जब फ्यूज हो जाएंगे तो फाइनली जाइगोट बनेगा एंड रिजल्ट इनटू ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल। वी तो आइडेंटिकल नहीं होंगे, फादर के जैसा केवल नहीं होगा, केवल मदर के जैसा नहीं होगा, उसके अंदर फादर और मदर दोनों के कैरेक्टर्स आ सकते हैं, किसी का कम या किसी का ज़्यादा, तो ये आइडेंटिकल नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट यूनिपेरेंटल, रादर इट इज़ द बाई पेरेंटल, राइट। तो अब बहुत सारे आप डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का स्टडी करेंगे प्लांट्स और एनिमल या फंजाई में, तो आपको क्या दिखाई देगा कि उसके अंदर क्या क्या वेरी कर रहा है, डिफर कर रहा है। मॉर्फोलॉजी अलग होगी, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर अलग होगी, उनकी फिजियोलॉजी अलग होगी, और जो मोड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो भी अलग होगा, पैटर्न सेम होगा। मैंने बताया था पैटर्न का मतलब क्या होता है, उनका जे सेम होगा, आर सेम होगा, ए सेम होगा लाइफ साइकिल में, और पैटर्न मैकेनिज्म में लेंगे तो गैमेट का फॉर्मेशन और गैमेटिक जो फ्यूजन होगी वो सेम होगा, लेकिन चीज़ें बदल जाएंगी। क्लियर? नो, अब आइए देखें फिर से वही बात, कुछ भी नहीं छोड़ना है, एक भी लाइन एनसीईआरटी की नहीं छोड़नी, क्योंकि वो हमारा क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है। फिर हमने लिया एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्राय लोग छोड़ देते हैं, कभी कभी वही आपके 12 में भी क्वेश्चन आ सकता है, या नीट में भी उसकी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे क्वेश्चन बनाई जा सकती है। क्वेश्चन ये था, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, वीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट्स टू कम टू फ्लावर। मतलब पूछा जा रहा है कि इन सभी पौधों में आपको क्या लगता है कितनी बार फ्लावर आती है। आपको याद होगा हमने पढ़ा था शुरू में ही लाइफ स्पैन में कि प्लांट दो तरह के होते हैं, एक जो एक ही बार फ्लावरिंग करेगा मोनोकार्पिक होगा, और जो एक बार से ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा, सेवरल टाइम फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेगा, उसको पॉलीकार्पिक बोलते हैं। तो जो मोनोकार्पिक होगा, जो एक ही बार फ्लावरिंग करेगा पूरे लाइफ स्पैन में, उसका एग्जाम्पल हमने इसी में सेलेक्ट कर लो, राइस है, वीट है, मैरीगोल्ड है। लेकिन जो बार बार सेवरल सीजनल आने पर उसकी फ्लावरिंग होगी वो कौन है, मैंगो है, लीची है, कोकोनट है, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन था आपका कि इन सम प्लांट्स विद फ्लावरिंग comes more than once, what would you call the interflowering period। याद कीजिए, खूब अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाया था कि भाई इंटरफ्लावरिंग पीरियड को हम जुवेनाइल नहीं बोलेंगे, रेदर मैच्योर्ड स्टेज का एक पार्ट बोलेंगे। याद कीजिए मैंने पढ़ाया था, और ये पेरेनियल में होगा जहाँ पे दो फ्लावरिंग की पीरियड के बीच का टाइम होता है, यही है इंटरफ्लावरिंग प्लांट, ये जुवेनाइल नहीं है, रेदर अ पार्ट ऑफ मैच्योरिटी। बहुत डिटेल पढ़ा था हमने, इसको याद होगा आपको। दूसरा क्वेश्चन है, डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर, वाई डू यू थिंक द एबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट्स इज सीजनल।
बात सही है। एक्चुअली जो है पेरेनियल प्लांट्स होते हैं वो पॉलीकार्पिक होते हैं और उनका एक पर्टिकुलर सीजन होता है, उसको हम सीजनल बोलते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो थ्रू आउट ऑफ ईयर्स भी फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सीजनल्स होते हैं, राइट। नाउ अब आइए बात करते हैं, जैसे मैंगो ले लो, ये सीजनल है, एप्पल भी आपका सीजनल होता है, जैक फ्रूट भी सीजनल होता है। तो खासकर ये जो प्लांट्स हैं वो सभी सीजनल होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो हमारे थ्रू आउट द ईयर होते हैं, जैसे मैंने यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में वही क्वेश्चन पूछा कि भाई कोई नाम बता दो आप मुझे, तो मैंने बताया भी है। देखो ये मोरिंगा जो है इसको सहजन बोलते हैं। आप देखोगे कुछ एरिया में ये क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर पाया जाता है। जैसे आप है ना, मैंगो जो है हमारा वो सीजनल हो गया। क्लियर? नाउ यस, उसी से रिलेटेड बात आ रही है, सीजनल ब्रीडर्स एंड द कंटिन्यूअस ब्रीडर्स क्या होते हैं। नाम से स्पष्ट होगा, सीजनल एक खास सीजन में ही उनका रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट होगा, रिप्रोडक्शन करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। लेकिन कंटिन्यूअस ब्रीडर जो होते हैं भाई वो सालों भर ऑन रहते हैं। मतलब क्या, वो उनके लिए कोई सीजनल नहीं होता। यस, आप और सभी ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, सभी प्राइमेट्स जो हैं, ह्यूमन, मंकी, एप्स, ये सभी ऐसे हैं जो कौन होते हैं, ये कंटिन्यूअस सालों भर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जबकि कुछ जो हमारे मैमल्स हैं, जो नॉन प्राइमेट मैमल्स हैं, काऊ हैं, शीप हैं, रैट्स हैं, डियर हैं, डॉग्स हैं, टाइगर्स हैं, राइट, हॉर्सेज हैं, ये सभी ऐसे हैं जो सीजनल्स होते हैं। ये नॉन प्राइमेट मैमल्स हैं जो सीजनल, एक खास सीजन में ही वो उनकी क्या होती है, रिप्रोडक्शन होती है। तो बिल्कुल समझ में आ गया, दो तरह के ब्रीडर्स हैं, एक केवल पार्टिकुलर सीजन में जैसे स्प्रिंग में या समर में या विंटर में उनकी खास सेक्सुअल अपील होती है, प्रोज होता है जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जबकि कंटिन्यूअस जो होती है वो थ्रू आउट द ईयर ये इनका चलता रहता है कहानी, राइट। नाउ सी, सो वी हैव सेक्सुअल ब्रीडर्स एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। सेक्सुअल ब्रीडर्स मेनी मैमल्स में होंगे, मैंने बताया अभी, ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट द साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन। विंटर हो सकता है, ऑटम हो सकता है, कोई खास सीजन में ही रिप्रोडक्टिव फेज शो करेंगे, दैट्स वाई कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स। जैसे एग्जांपल मैंने बताया, बर्ड्स लेइंग, जो बहुत सारे बर्ड्स हैं जो सीजनल होते हैं। फ्रॉग, लिजार्ड्स भी सीजनल ही होता है। नॉन प्राइमेट्स मैमल, जैसे नॉन प्राइमेट्स मैमल देखो यहाँ पे मैंने चर्चा करी है, काऊ है, सीप है ना, रैट, डियर, रॉक, हॉर्सेज, ये सभी नॉन प्राइमेट्स हैं। ये भी साइक्लिक सीजन जो होगा वो पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोडक्शन होगी उनकी। इसके अंदर एक खास तरह की साइकिल चलती है जिसको ऑस्ट्रस साइकिल कहते हैं, या ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे डिटेल। और जबकि जो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स हैं, ऐसे मैंने कहा थ्रू आउट द ईयर जो है, जिसको सीजन से कोई मतलब नहीं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सीजन उनकी सेक्सुअल फेज चलती रहती है, दीज आर द कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। इसमें भी बर्ड्स आते हैं, लेकिन ये बर्ड्स कैसे हैं, कैप्टिव बर्ड्स हैं, पोल्ट्री फार्म वाले, इनको हम कंटिन्यूअस ब्रीडिंग कराते हैं। देखते हो सालों भर आपको एग मिलता रहता है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, राइट। तो ये रोज अंडे कब मिलेंगे, जब सीजनल होगा, नहीं, जब वो कंटिन्यूअस ग्रोथ थ्रू आउट द ईयर करेंगे। तो ये थ्रू आउट द ईयर इनके अंदर ब्रीडिंग होती है। उसके अलावा जो प्राइमेट्स मैमल है, ममाल्स, जैसे ह्यूमन है, मंकी है, एप्स है, ये सभी के अंदर जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, राइट। तो ये सभी प्राइमेट्स कैसे होते हैं, ये कंटिन्यूअस होते हैं। जो नॉन प्राइमेट्स वाले हैं ये सभी सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। सो गॉट द पॉइंट? यस डॉक्टर, समझ में आ रहा है? आप भी क्या हो? यस, यू आर द ऑल्सो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, बट वेट, बी डॉक्टर फर्स्ट। तो हमें पहले बात करें, सीजनल ब्रीडर समझ में आ गया, डिसकंटिन्यूअस ब्रीडर समझ में हमें आ गया, और ये भी देखा कौन कौन सीजनल हो सकते हैं, कौन कौन कंटिन्यूअस हो सकते हैं। नॉन प्राइमेट्स क्या हो सकता है, प्राइमेट्स क्या हो सकते हैं, प्राइमेट्स में मैमल्स कैसे, मैमल के बोलाएगा तो इन्हें घबराना नहीं है, देखना है किस मैमल्स की बात हो रही है, प्राइमेट्स की बात हो रही है या नॉन प्राइमेट्स की बात हो रही है, राइट। यस, अब फिर वही बात, एक और क्वेश्चन आ गया आपके एनसीईआरटी के बेसिस पे, भाई इन टेक्स्ट क्वेश्चन से छोड़ नहीं सकते। वैसा मैंने बताया कि कैन यू लिस्ट चेंजेस सीन इन द ह्यूमन बीइंग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। यस, ये पुबर्टी की बात हो रही है। नहीं बोलते हैं भाई लड़का तेरा जवान हो रहा है, मूंछ आ रही हैं, हाँ दाढ़ी हो रहे हैं, बच्चा जवान हो रहा है,
गर्ल्स के लिए बोलते हैं भाई लड़की जवान हो रही है, देखो इसकी मेमोरी ग्लैंड्स और क्या क्या बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। सो दीज आर द सेकेंडरी ग्रोथ दैट अकर्स आफ्टर द पुबर्टी। तो ये तो भाई साहब सब दिखता है, ह्यूमन में तो बिल्कुल सही दिखता है, आपको पता है। और आप डिटेल इसकी लिस्ट पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। एमॉन्ग एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, डू दे ले एग्स ऑल थ्रू द ईयर्स। बिल्कुल सही, आप बोल सकते हो हाँ, हम यस बोल सकते हैं, लेकिन किसके लिए बोल सकते हैं? ये पोल्ट्रीज के लिए बोल सकते हैं, पोल्ट्री वाले के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी हमने देखा जहाँ पर सीजनल होते हैं, तो यस बोल सकते हैं, बट स्पेशली फॉर द जो कैप्टिव बर्ड्स हैं हमारे, उसके लिए। कुछ नॉन कैप्टिव बर्ड्स हैं जिसके अंदर सीजनल होती है, थ्रू आउट द ईयर नहीं होती। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज इट्स सीजनल, क्या ये सीजनल है? तो मैंने कहा ना कुछ सीजनल हो सकते हैं, लेकिन दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है जैसे फ्रॉग और लिजार्ड्स की बात करो तो क्या लगता है? अभी हमने पढ़ाया कि फ्रॉग और लिजार्ड्स दोनों ही कैसे हैं? बोथ आर सीजनल ब्रीडर्स, दोनों ही सीजनल ब्रीडर्स, राइट। क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय ग्रोइंग ओल्ड। ये ग्रोइंग ओल्ड क्या है? ये भी हमने बताया था, बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होंगे, इन्वायरमेंट के कारण भी बहुत सारे असर आती है, और इन दोनों के कारण बॉडी के अंदर जो चेंजेस आएगा, जो जुवेनाइल से रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव से सेनेसेंस आएगी, इसी बीच की जो कड़ी है, दिस इज कॉल्ड ग्रोइंग एज। जूलॉजी में आप पढ़ोगे, जेरंटोलॉजी बोलते हैं कि एजिंग कैसे हम पढ़ सकते हैं, कैसे कैसे एजिंग होती है, कैसे हार्मोन्स होता है, वो सारे हमारे बॉडी के एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ योर जूलॉजी, राइट। नाउ इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन कौन से काम होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्या क्या मेन स्टेप्स होता है? तो भाई जो रिमार्केबल फंडामेंटल स्टेप्स हैं वो सब में सेम है, बेशक उसके मेथड्स वेरी कर सकते हैं, वो सेम मेथड जो है वो वेरी एलेबोरेटिव है, कॉम्प्लेक्स है, और 3 स्टेज में हम पढ़ते हैं। दैट इज़ द प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले की अवस्था, जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट की फ्यूज़न होगी। फर्टिलाइजेशन, गैमेटिक फ्यूज़न नहीं, ये जो हमारा है यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है और गैमेट की ट्रांसफ़र होती है। यहाँ पे होता है गैमेट का फ्यूजन, जिसको सिनगैमी कहते हैं। देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल किस तरह से जाइगोट आगे बढ़ेगा और ये इम्ब्रियो को बनाएगा जाइगोट, दिस इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इसको आइए फर्स्ट देखते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, नाम से स्पष्ट है भाई कि ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर, किसके पहले? फर्टिलाइजेशन के पहले, मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के पहले की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या क्या आएगा? गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट की ट्रांसफर होगी। गैमेट का फॉर्मेशन ही कहलाता है गैमेटोजेनेसिस, और गैमीट्स जो होती है वो इधर मेल की हो या फीमेल की हो, वो बिल्कुल दोनों ही कैसी होगी? हैप्लॉइड होती है, राइट। नाउ अब ये गैमेट्स भी 2 तरह के हो सकते हैं डॉक्टर्स। कैसे हो सकता है? दोनों दिखने में एक जैसे हो, देखो ये दोनों एक जैसे हैं, साइज भी बराबर है, इनके फ्लैजेला आपको दिखाई दे रहा है, दीज आर द फ्लैजेला, और ये जो फ्लैजेला है, फ्लैजेला भी दोनों में लगभग एक लेंथ वाली है, एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रही है। तो क्या देख रहे हो आप? आपने ये देखा यहाँ पे कि किस तरीके से दिस इज द होमोगैमीट्स, एक जैसे गैमीट्स वाले को बोलेंगे होमोगैमीट्स, अलग अलग टाइप वाले को बोलेंगे हेट्रोगैमीट्स, जिसमें इसी को एनिसोगैमीट्स भी बोल सकते हैं, ऊगैमीट्स भी बोल सकते हैं। ये आइसो है तो आइसो माने सिमिलर टाइप है वो। तो 2 गैमीट्स ऑफ सिमिलर अपीयरेंस होगा, नॉट पॉसिबल टू कैरेक्टराइज, आप पहचान नहीं पाओगे कि इसमें कौन मेल है। ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ये भी फीमेल हो सकती है या मेल हो सकता है, आप पहचान नहीं पाओगे। देन दिस इज कॉल्ड आइसोगैमीट्स। लेकिन यदि आपने मॉर्फोलॉजिकली उसको डिस्टिंक्ट कर दिया कि भाई देखो यही है, छोटे साइज का है, मोटाइल है, देन दिस इज द मेल गैमेट। देखो ये छोटे साइज का है, मोटाइल है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिसको आपने क्या कहा? मेल गैमेट्स का। लेकिन जो लार्ज साइज का है, नॉन मोटाइल है, तो आपने डिस्टिंक्ट कर दिया, देखो यही है एक फीमेल गैमेट्स है और ये मेल गैमेट्स है। स्पर्म की बात हो रही है, ये कहाँ है? ये ह्यूमन में देखा जाता है। दिस इज द डायग्राम इन ह्यूमन, क्लियर। तो इस तरीके से ये दोनों डिफरेंट हो रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड हेट्रोगैमेट्स। वैसे ही एक और एग्जांपल हम देखें, ये भी अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दिस इज अबाउट फ्यूकस। यस, फ्यूकस इज योर ब्राउन एल्गी। तो ये ब्राउन एल्गे में याद कीजिए, यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो स्ट्रक्चर है, ये दिस इज योर मेल गैमेट्स एंड दिस इज योर फीमेल गैमेट्स।
जैसे दोनों अलग अलग हैं, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो हेट्रोगैमेट्स, राइट। सो इस तरीके से वी हैव जो गैमेट्स बनते हैं वो हैप्लॉइड्स होंगे। ये हैप्लॉइड्स एक जैसे दिखेंगे, आप डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते कौन मेल है कौन फीमेल, दिस इज होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स, लेकिन आपने डिस्टिंगाइज कर लिया, देन दिस इज द आइसोगैमेट्स, हेट्रोगैमेट्स, ऊगैमेट्स, राइट। और जो होमोगैमेट्स है, यदि हम इसमें एल्गे का एग्जाम्पल देखते तो क्लैडोफोरा आता है, राइट। जबकि हमारे पास फंजाई का एग्जाम्पल है राइजोफोरा, सिंकाइट्रियम। और ये जो होमोगैमेट्स का फॉर्मेशन है, दिस इज द प्रिमिटिव फॉर्म है, फर्टिलाइजेशन के पहले की अवस्था है और दोनों सेम है। तो ऐसा जो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स है उसको प्रिमिटिव मेथड मानते हैं, प्रिमिटिव इवोल्यूशन का पार्ट है। और यदि वो अलग अलग हो रहा है, दिस इज सपोज टू बी द एडवांस फॉर्म, एडवांस गैमेट्स, जबकि होमोगैमेट्स आर द प्रिमिटिव गैमेट्स, राइट। हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर, गुड। सो यदि हम बॉडी थैलस पे ले, यदि हमारे पास कोई ऐसा ही एक बॉडी है इधर, राइट, एक बॉडी है इधर और एक ही बॉडी के अंदर मेल सेक्स भी है फीमेल सेक्स भी है, दिस इज कॉल्ड होमोथैलिक। और इसी होमोथैलिक को मोनोइशियस भी बोलते हैं। मोनो माने एक, ईसियस का मतलब होता है सेक्स कंटेनिंग बॉडी, सेक्स कंटेनिंग बॉडी। एक ही सेक्स कंटेनिंग बॉडी में दोनों मिल जाए, मेल भी और फीमेल भी, दिस इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल कंडीशन। और ये होता है किसमें, होमोथैलिक में। इसी को हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, जो सेवरल फंजाई और प्लांट्स में देखा गया। जैसे प्लांट्स में कैरा है, कोकोनट हो गया, कम बीट्स हो गए, मेज हो गए। यदि हम एनिमल्स की बात करें तो वी हैव अर्थवर्म, स्पॉन्जेस, स्टेपवर्म एंड लीचेस, राइट। जबकि हेट्रोथैलिक में क्या बोल रहे हैं, नहीं, देखो भाई यहाँ पे हमारे पास ये दो बॉडी हो जाएंगी, एक में मेल है तो दूसरे में फीमेल है, एक ही बॉडी में नहीं है। मीन्स टू से एक बॉडी में एक सेक्स है, इसका मतलब ये कंडीशन कैसा हो गया, यूनिसेक्सुअल कंडीशन। डाई मीन्स टू, ईसीएस का मतलब बताया सेक्स कंटेनिंग बॉडी, सेक्स रखने वाली बॉडी एक नहीं है, दो है, अलग अलग, मेल का अलग फीमेल का अलग। जैसे आप केवल एक में मेल फ्लावर होगा तो स्टेमिनेट प्लांट बोलेंगे, केवल फीमेल फ्लावर होगी तो पिस्टिलेट फ्लावर बोलेंगे, राइट। तो ये प्लांट्स के लिए हो गया, ये भी सेवरल एनिमल्स और प्लांट्स में होता है। प्लांट्स की बात करें तो डेट पाम है, पपाया है, मार्केंसिया है, ये सभी हमारे डायसियस प्लांट हैं। कॉकरोच भी आप ले लोगे, ये भी डायसियस प्लांट्स होता है, इज इट क्लियर। और आप कुछ देखेंगे कि मेल अलग है और फीमेल अलग है, ये डायग्राम भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन एक एनसीईआरटी ने जाते जाते पूछ दिया कि क्या आप जानते हो, क्या पूछा, क्या आप जानते हो कि कैन यू आइडेंटिफाई केसेस विद सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑब्जर्व। अब भाई सेल्फ फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है, तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो होगा ये कहाँ होगा। अब मान लो कि भाई एक ही बॉडी है, हमने कहा कि भाई यहाँ पर ये लो, ये एक ही में दो, ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, इसी के अंतर्गत हो गया। कुछ लोगों ने इसको भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोला, कहा कि नहीं भाई एक ही फ्लावर हमने लिया है, यहाँ पे बाइसेक्सुअल है, यहाँ मेल भी है और फीमेल भी है, फीमेल मेल से यहाँ पर फीमेल फर्टिलाइजेशन हुआ, इसको भी क्या बोलेंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। मतलब ये कि यदि एक ही प्लांट के में यदि गैमेटिक फ्यूजन हो रही है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ फर्टिलाइजेशन, राइट, गुड। नाउ यस, अभी मैं बात कर रहा था कि कॉकरोच में आप देखेंगे ये डाइसियस है, यूनिसेक्सुअल है, तो ये यूनिसेक्सुअल एनिमल है, ये मेल बॉडी है। देखो मेल बॉडी ऐसा है, यू ऑल नो, अपने मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल में पढ़ा है कॉम्प्लेक्सिटी में। ये देखो फीमेल सेक्स है, right, this is the female cockroach, a female cockroach, you all know this is the structure, this is ovary of the cockroach। तो इस तरीके से दोनों सेक्स अलग अलग हैं, मेल का अलग है एंड द फीमेल सेक्स अलग है, दैट्स वाई बॉडी कैसी हो गई, इनकी बॉडी डायसियस हो गई। जबकि ये देखो ये अर्थवर्म की बात कही गई है, ये बाइसेक्सुअल है, सी दिस इज द ओवरी फीमेल सेक्स, दिस इज द टेस्टिस, ये मेल सेक्स है, एक ही में दोनों बॉडी आया, यू कैन से दिस इज द मोनोइसियस एंड बाइसेक्सुअल, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि डाइवर्सिटी होती है सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में। बॉडी केवल एक सेल का, मेल या फीमेल का हो सकता है, या ये मेल और फीमेल दोनों एक ही में होगी, एक ही में होगी तो मोनोइशियस बोलेंगे, अलग अलग होगी तो डाइसियस बोलेंगे। क्लियर। नाउ ये तो एनिमल की बात हो गई थी, प्लांट के साथ भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। बिल्कुल, प्लांट में यदि हम मोनोइसियस की बात करें तो ये कैरा अपना ग्रीन एल्गी है, आप सभी देख रहे हो प्लांट्स इसके, इसमें क्वेश्चन आता है
ये जो कह रहा है दिस इज द मेल थैलस, ये देखो मेल है, मेल सेक्स ऑर्गन है, और यही मेल सेक्स ऑर्गन, जबकि ऊपर में ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, दिस इज द दिस इज द ओगोनियम, and this is antheridia. Antheridia is the male sex organ and ogonium is the female sex organ. इसी में क्वेश्चन आता है कि बताओ इसमें न्यूक्यूल किसको बोलते हैं और इसमें ग्लोब्यूल किसको बोलते हैं? याद आ रहा है? न्यूक्यूल एंड ग्लोब्यूल, टेल मी। तो ग्लोब्यूल है, ग्लोब्यूल इज योर मेल सेक्स ऑर्गन, इसी मेल सेक्स ऑर्गन को ग्लोब्यूल बोलते हैं, एंड न्यूक्यूल इज योर दिस फीमेल सेक्स ऑर्गन, राइट। ये न्यूक्यूल आप देख रहे हो, दिस इज द फीमेल सेक्स, यहाँ पर कोरोना होती है, यह ओबम हो गया इसका, और यहाँ पे ये है एंथेरिडिया है, इसी में एंथेरोजॉइट्स बनते हैं जो फ्लैजेलेटेड होते हैं, फर्टिलाइजेशन करेगा वो। लेकिन एक ही बॉडी में दोनों सेक्स आप देख रहे हो, ऊपर में फीमेल है और नीचे में मेल है, दैट्स वाई इट इज बाइसेक्सुअल। ये क्या हो गया? बाइसेक्सुअल बॉडी हो गई, और इसी बाइसेक्सुअल बॉडी को हम क्या बोलते हैं? मोनोइसिस बोलते हैं। जबकि अब दूसरी कहानी अब देख ले, मार्केंसिया। मार्केंसिया आपको सबको पता है, ये ब्रायोफाइट्स का पौधा है, और यहाँ पे ये डायसियस है, अलग अलग देखो, मेल थैलस अलग है, फीमेल थैलस भी इसकी अलग है। फीमेल सेक्स को बोलते हैं आर्किगोनिया। आर्किगोनिया फीमेल सेक्स की ब्रांच बन के ऊपर आई है, इसलिए इस फीमेल ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? फीमेल ब्रांच को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं फोर। तो पूरा नाम क्या हो गया? आर्किगोनियोफोर। जबकि जो मेल सेक्स है उसके लिए बोलते हैं एंथेरिडिया, और ये मेल ब्रांच है, चूंकि मेल ब्रांच बनाया, फोर बनाया, दैट्स वाई कॉल एंथेरिडियोफोर। तो फीमेल ब्रांच आर्किगोनियोफोर, मेल ब्रांच एंथेरिडियोफोर। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि बताओ मार्केंसिया कैसी बॉडी है? बिल्कुल डायसियस है, और ये ब्रायोफाइट्स का प्लांट है मार्केंसिया, राइट। नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ द स्वीट पी, एंड स्वीट पी में बाइसेक्सुअल फ्लावर है। यहाँ देखे, ये मेल सेक्स है एंड स्टामेन, और ये फीमेल सेक्स कार्पेल। इसी में आप देख रहे हो, यही हो गई कौन? पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और यही हो गई कौन? ओवरी। यही तीन चीज मिलके कार्पेल का फॉर्मेशन करती है। इसी ओव्यूल के अंदर ये ओव्यूल है जिसके अंदर फीमेल सेक्स होती है, जबकि स्टामेन आप देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एंथर होता है, और इसी एंथर के अंदर मेल जो पॉलन सैक है वो होता है, उसी से पॉलन ग्रेन आती है, और फिर पॉलन ग्रेन से हमारा मेल गैमीट्स बनता है। इज इट क्लियर? तो ये एंजियोस्पर्म का पौधा आपने देख लिया, दिस इज योर एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्म्स, राइट। स्वीट पोटैटो ये देखा ब्रायोफाइट्स में, और ये आपको मिल गए किस में? इन द केस ऑफ एल्गी। तो तीन अलग अलग केसेस में आपने रिपोर्ट करा डाइवर्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। डॉट क्लियर? नाउ फिर क्वेश्चन आया, नहीं छोड़ सकता, बताया था बिल्कुल हमें इसको एक एक चीज़ को देखना है। नेम द टाइप ऑफ गैमीट्स दैट आर फॉर्म्ड इन स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर। अब गैमीट्स की बात कर रहे हैं। अब स्टैमिनेट तो मेल तो अलग होता है, फीमेल अलग होती है, तो ये दोनों कैसे होंगे? ये अलग अलग टाइप के होंगे, देखने में भी अलग अलग होते हैं। तो आप बोल सकते हो कि भाई ये कैसा है? आप बोल सकते हो ये तो हेटेरोगैमीट्स है, दोनों गैमीट्स अलग अलग तरह के होंगे, तो कैसे हैं? हेटेरोगैमीट्स होते हैं, राइट। नाउ आर इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीसीज इधर मेल और फीमेल? बिल्कुल सही, ये ऑल स्पीसीज की बात बोल रहे हैं। क्या सभी या तो मेल होते हैं या तो फीमेल होते हैं? तो आप बोल सकते हो देखो भाई, स्पीसीज तो दो तरह के हो सकते हैं, यदि वो यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं, यदि वो बाइसेक्सुअल होंगे। यूनिसेक्सुअल होगा तो केवल मेल सेक्स एक अलग हो सकता है, फीमेल सेक्स अलग हो सकता है, लेकिन बाइसेक्सुअल में क्या होगा? एक ही बॉडी में मेल भी होगी और फीमेल भी होगा, जैसे भी हमने देखा अर्थवर्म में देखा हमने, राइट। अलग अलग में अभी आपने देखा, कारा में देखा, राइट, आपने कॉकरोच में देखा। तो ये दोनों हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअलिटी भी आएगी और बाइसेक्सुअलिटी भी आ सकता है, डिपेंड करता है किस स्पीसीज की चर्चा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर दीज स्पीसीज हुज पोजेस बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बाइसेक्सुअल होंगे? बिल्कुल सही, सही बात है। यदि एक ही बॉडी के अंदर मेल सेक्स भी होगा, फीमेल सेक्स भी दोनों रखेंगे, तो ये बाइसेक्सुअल कहलाएगा, और इसी बाइसेक्सुअल को हम मोनोइसिस के प्लांट्स बॉडी भी बोलते हैं, राइट। गुड।
सो अब रही बात कि भाई ये गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब देखो स्थिति क्या है ना कि हमें डिपेंड करना है कि प्लांट हमने कैसा लिया है। अब ध्यान दो, यदि प्लांट आपका 2n है, डिप्लॉयड है, या प्लांट आपका हैप्लॉयड है, तो क्या होगा, इसको गैमेट्स बनाने के लिए तो मैंने बताया था गैमेट्स हैप्लॉयड होता है, चाहे वो कोई भी हो, डिप्लॉयड हो या फीमेल हो। यदि उसने डिप्लॉयड प्लांट बॉडी से हैप्लॉयड बनाया है तो यहाँ क्या होगा, मियोसिस होगा, रिडक्शन डिवीजन। लेकिन यदि उसने एन से एन बनाया तो यहाँ क्या होगा, माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं होगा। बेशक दोनों ही गैमेट्स कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे। तो गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड। यदि वो 2n से बन रहा है तो गैमेटिक मियोसिस होगी, यदि वो n बॉडी से बन रहा है तो बॉडी कैसी होगी, वहाँ गैमेटिक माइटोसिस होगी। इज इट क्लियर। और गैमेटिक जो माइटोसिस होती है वो एक्सेप्शनल केस है एंड दिस इज वेरी कॉमन इन, ये जो माइटोसिस वाला केस है ये आप देखोगे कि मैक्सिमम एल्गी में और जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वहाँ होता है, क्योंकि यही जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट्स होती है और गैमेटोफाइट्स हैप्लॉयड होता है। याद आ रहा है आपको नाउ। तो यही बात इसमें कही गई है जो मैंने बताया आपको, गैमेट्स मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, ये हैप्लॉयड बॉडी है और हैप्लॉयड बॉडी जो होगी उसके अंदर माइटोटिक सेल डिवीज़न होगा। अभी मोनरा में भी ऐड कर सकते हो, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट जैसा भी मैंने बताया। जबकि डिप्लॉयड बॉडी होगा तो वो कहाँ होगा, वो रिक्शा में हो सकता है, राइट। और उसके बाद आप देखोगे जिम्नोस्पर्म में हो सकता है, एंजियोस्पर्म में हो सकता है एंड मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स में हो सकता है, राइट। जबकि जो डिप्लॉयड बॉडी है वो वहाँ पे जो गैमेट्स बनाने वाला ये 2n सेल है, दिस इज कॉल्ड मियोसाइट। ये गैमेटिक मदर सेल कहलाते हैं जो मियोसिस करेगा और गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, राइट। नाउ तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मियोसिस होगी और फाइनली क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा एंड द गैमेटोजेनेसिस होगी। यस, सी हाउ वी हैव दिस सेल डिवीजन हो रहा है, यहाँ पर गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है। प्लांट्स एनिमल्स में लिया हमने, ये प्लांट्स में लिया है, हमारे पास ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये देखो जो मियोसाइट्स होते हैं वो 2n हो गया हमारा, इसके अंदर मियोसिस होगा तो गैमेट्स बनेगी। गैमेट्स कैसा होगा, हैप्लॉयड होगा। ये क्वेश्चन आते हैं, बताओ फ्रूट फ्लाई में यदि मियोसाइट्स 8 हैं तो गैमेट्स कितना होगा, 4 होगा। क्वेश्चन आएगा भाई हाउस फ्लाई में जो गैमेट्स होते हैं कितने हो गए, चूँकि मियोसाइट्स 12 है तो ये 6 हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा भाई कैट्स में क्या हो सकता है, रैट्स में क्या हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये वेरी कर सकता है ना। अब ये 19 है तो ये क्या हो जाएगा, डबल कर दो, 38 हो गया इसका। ये 21 है तो ये 42 हो गया, राइट। तो इस तरीके से ये वेरी करता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे वेरिएशन आएगी। तो मैंने यहाँ ट्रिक्स लिखा है कि भाई ये देखो, फ्रूट हाउस कारा हम डॉग बॉयफ्रेंड, राइट। तो याद रखना क्या बोला मैंने, फ्रूट हाउस कारा हम डॉग बॉयफ्रेंड। तो यहाँ पर नंबर भी देखो 8, 6, 12, 38, 42, 46, 78 और सबसे लार्जेस्ट क्या है 380। यहाँ मैंने ट्रिक्स बना के रखा हुआ है। ट्रिक्स क्या है कि याद करने का आप बोल सकते हो, ओम रैप फंड्स। ओम किसके लिए लिया, ओनियन, मेज, रैप, राइस, एप्पल और पोटैटो, फंड। तो आपको याद होगा एनसीईआरटी में ओम रैप फंड, इसका लिया मैंने क्या, फ्रूट हाउस कारा, ह्यूमन और डॉग, हम डॉग, बटरफ्लाई के लिए हमने लिखा है बॉयफ्रेंड, राइट। तो इस तरीके से नंबर भी देखो, इसका क्या 16 है तो 12 हो गया, 20 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 है, ये 12 है तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा या हाफ हो जाएगा। यदि गैमेट्स बनाएंगे तो हाफ और मियोसाइट्स होगा तो डबल होगा। तो ओम रैप फंड्स याद रखना है। देखो यहाँ पर देखो 4 ऐड करा, 4 ऐड करा और 10 ऐड करा, देखो 16, 20, 24, 34, देख रहे हो ना। और फिर यहाँ से 48 और सबसे ज़्यादा 1246, तो याद ही रखना है जीके की तरह हो गया। सबसे ज़्यादा कितना 1260। अब इसी का डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2, नहीं डबल कर दो तो क्या हो जाएगा 0, 2, राइट और 5 और 2। तो इस तरीके से डबल कर दिया आपने तो 0, ठीक है। सो 1, 2, 6, 0 डबल कर लो आप तो ये हो गया आपको 0, ये हो गया 2
ये हो गया 4 and 1 5 और ये 2, हाँ सही लिखा हमने, नहीं? तो इस तरीके से आप ले सकते हो, इसकी नंबर आ सकती है। इज इट क्लियर? चलो, तो ये आप याद करना है एनसीईआरटी के डायग्राम से, ऐसे याद करने का मैंने बता भी दिया है। वैसे याद रखना है क्या, ओम, रैप, फंड्स, फ्रूट, हाउस, कारा, हम, डॉग, पॉ, फ्रेंड। तो वैसा ही उसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन है कि क्या मियोसिस जो होती है वो कभी भी नहीं होती हैप्लॉइड में? नहीं होती भाई, कभी हो नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। ये हैप्लॉइड में होगी, लेकिन ये जो हैप्लॉइड में जो होगी वैसी स्थिति में होगी भाई, गैमेट बनाओगे तो ये हो जाएगी, राइट? फिर जब उसके अंदर मियोसिस तब होगी जब जायगोट होगा, तो उसके अंदर रिडक्शन डिवीजन होगा, फिर ये बॉडी बनाएगा ऐसा। तो मियोसिस होगी, लेकिन कहाँ नहीं होगी? हैप्लॉइड बॉडी में कभी नहीं होगी, हैप्लॉइड में नहीं होगी। जब भी होगी तो कहाँ होगी? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स में होगी। फिर बोलते हैं कि इज एनी रिलेशनशिप ऑफ द मियो नंबर ऑफ क्रोमोजोम एंड गैमेट्स? बिल्कुल भाई, ये 2n है, मियोसिस होकर गैमेट्स बनाता है, तो गैमेट्स क्या हो गया? n हो गया। और जो मियोसाइट्स होती है वो कैसी होगी? ये तो 2n होती है ना? हैव यू एवर वंडर्ड द गैमेट्स मीट? यस, गैमेटिक फ्यूजन होता है, ये भी देखा हमने। नाउ गैमेटिक ट्रांसफर की बात करी, मेजॉरिटी ऑफ जो गैमेट्स हैं मेल मोटाइल होता है, फीमेल कैसी होती है? स्टेशनरी होती है, राइट ना? और उसके लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पानी ले लो, पानी की सहायता से जो मेल गैमेट्स हैं वो मूव करते हैं। फीमेल गैमेट्स के पास फर्टिलाइजेशन होता है, तो वाटर इज़ अ वेरी गुड मीडियम फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। इसीलिए आपने पढ़ा होगा एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स को। टेरिडोफाइट में वैस्कुलर एम्फीबियन बोलते हैं, इसको नॉन वैस्कुलर एम्फीबियंस बोलते हैं। क्लियर? क्योंकि ये दोनों बाहर जाके फर्टिलाइजेशन करेंगे, गैमेट्स भी हमें प्रोड्यूस करके पानी में भेजना पड़ता है, इसीलिए जो मेल गैमेट्स की संख्या होती है वो ज़्यादा होती है फीमेल गैमेट्स की। कितने? 1000, 100, थाउजेंड्स में होती है, सेवरल थाउजेंड्स मैंने लिखा है यहाँ पे। तो याद रखना है, इसलिए चूंकि बहुत सारे फेल हो जाएगा, सारे मेल गैमेट्स जाके फ्यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए मेल की मजबूरी है कि मैक्सिमम गैमेट्स का फॉर्मेशन किया जा सके। क्लियर? नाउ ये गैमेटिक ट्रांसफर की बात तो भी मैंने बताया, ये तो बताया है जो ऐसे होगा, लेकिन यदि वो पॉलिनेटिंग प्लांट है तो कैसे होगा? पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब बनाता है, पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स होते हैं, ये एंट्री करता है फीमेल गैमेट्स के अंदर, और वहाँ से क्या होती है? गैमीट जो होती है वो पोलन ट्यूब के थ्रू क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है। तो आप देख रहे हो जो पोलन ट्यूब है वो कैरी कर रहा है मेल गैमेट्स को, और फीमेल गैमेट्स को फ्यूज़ कराएगा इन ओव्यूल, और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। तो अलग अलग जो डायसियस है वहाँ भी अलग मैकेनिज्म इसके लिए बनाया गया है, और सक्सेसफुल जब ट्रांसफ़र होगी इसी को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। तो जो प्री फर्टिलाइजेशन का स्टेज है उसमें 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स थी, कैसे गैमेट का फॉर्मेशन हुआ और कैसे गैमेटिक की ट्रांसफ़र हुई है, राइट? सो दिस व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? यस, फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। देख रहे हैं 2 गैमेट्स है, फ्यूज करके जायगोट बनाया, जायगोट से फ्रिस्पिंग हो गए, दोनों देखने में एक जैसे थे, दैट्स वाई ये कैसे हो गए? ये होमोगैमेट्स हो गए, जो एल्गी में देखा हमने, राइट नाउ। और इसी फर्टिलाइजेशन को सिंगैमी भी बोलते हैं। सिंगैमी फर्टिलाइजेशन फ्रिक्वेंटली हम लोग एक ही तरह की यूज़ कर सकते हैं बोलने के लिए। हाँ, यदि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है दिस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और यदि बॉडी के बाहर हो रहा है आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ऐसा देखा जाता है जब एक्सटर्नल होगा तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई सिंक्रोनी होना चाहिए, कि भाई उसी समय फीमेल बॉडी भी गैमेट्स बना के रिलीज करे, मेल गैमेट्स भी एक ही साथ निकाले, ताकि बॉडी बाहर मीडियम एक्सटर्नल मीडियम में फ्यूजन कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सिंक्रोनी होनी चाहिए, और अधिक से अधिक संख्या में जरूरी नहीं है कि कोई निकला और वही जाके फ्यूज कर जाए, इसलिए मैक्सिमम अमाउंट में बनाना पड़ेगा मेल गैमेट्स को भी और फीमेल गैमेट्स को भी। इसलिए लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स शुड बी देयर इन द मीडियम, ताकि सिंक्रोनाइजेशन सपोर्ट करे और चांसेस ऑफ सिंगैमी बढ़ जाए। जबकि इंटरनल में ठीक है भाई, मेल गैमेट मोटाइल हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी कुछ केसेस में होते हैं, सीड में जैसे नॉन मोटाइल्स होते हैं सीड प्लांट्स में। और ये आप इंटरनल देखेंगे कहाँ कहाँ? मेनी फंजाई, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जबकि जो बोनीफिशेस हैं, फ्रॉग्स हैं, और लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो होते हैं इसके कैसे होते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। ये डायग्राम देखो, एनसीईआरटी का दिया हुआ है, ये बता रहा है कैसे पोलन जो है ना वो जर्मिनेट कर रहा है स्टिग्मा के ऊपर, और वह गैमेट्स जो है वो ट्रांसफ़र करेगी कहाँ? वो अंदर जाएगी पोलन ट्यूब के थ्रू, और फिर जाके वो ओव्यूल के अंदर एंट्री करती है। हाँ, ये देखो भाई, देखते देखते समझ में आ जाएगा आपको। ये मैंने बताया है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये देखिए 2 फिश है, फिश में देखो पानी के अंदर ये मछली ने क्या किया? अपना ओवम रिलीज़ किया,
राइट। और ये मेल हैं, ये मेल है फिश है, ये फीमेल फिश है, इसने ओवा रिलीज़ करी, यहाँ पर स्पर्म यूज़ करा और देखो दोनों आपस में फ्यूज होके इस तरह से ये फर्टिलाइज हो चुके हैं। आप यहाँ से और समझ सकते हो कि भाई देखो मेल ने रिलीज़ करा, स्पर्मेटोज हुआ, फीमेल ने यहाँ पे ओवा रिलीज़ किया, दोनों फर्टिलाइज हो गए। ये एक फर्टिलाइज होके ये एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियो फिर हैचेस करा, फाइनली यहाँ से न्यू फिश फॉर्मेशन हो गया। एंड दिस इज द वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जबकि ये देखो क्या हो रहा है, हाँ आप सब समझ रहे हो क्या हो रहा है। ये कहानी किसकी बता रहा हूँ, कॉक और हेन की। कॉक ने हेन को कुछ कुछ किया एंड फाइनली देख रहे हो किस तरह से मेल जो गामीट्स है वो स्पर्म ट्यूब के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है हेन के अंदर जो ओवरी है वहाँ पे एंड ओवरियन ट्यूब के थ्रू एंड फाइनली दिस फर्टिलाइजेशन देख रहे हैं बिल्कुल ट्रांसफर हो रहा है फीमेल बॉडी के अंदर, बाहर कुछ भी रिलीज नहीं हो रहा है। दैट्स वाई इट इज़ द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड दिस इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सो हमने देखा कि भाई इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर एडवांटेज ये हो गया कि प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर होगा, प्रोटेक्शन होगी जब तक उसका बर्थ हो रहा है तब तक। सो दिस इज़ वेरी गुड एडवांटेज ऑफ विविपेरस ऑर्गेनिज्म। जबकि यहाँ पर ये ओविपेरस हम बोल सकते हैं, यहाँ पे थ्रेटनिंग ज़्यादा है, पानी में आ गया, हो सकता है उसी समय को उसको खा जाए, प्रेडेशन हो जाए, इसलिए चांसेस इसकी बहुत ज़्यादा होती है लॉस होने की, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। पेरेंटल केयर यहाँ होता है जबकि यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि बॉडी के अंदर नहीं है। पैरेंथोजेनेसिस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो फीमेल गैमेट्स है वो फर्टिलाइज नहीं हुई और फिर भी उसने न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म दिया, दिस इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। और ये पार्थेनोजेनेसिस जो है आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है हनी बी के अंदर। आइए समझते हैं। हनी बी में 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, ये देखो 3 इंपॉर्टेंट हैं। एक इसमें क्वीन होती है, एक इसमें ड्रोन होता है और इसमें वर्कर्स होते हैं। जो क्वीन होती है ये देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी मैंने लिया ताकि आपको याद रहे। नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है ये आप देखो ये है 32 क्वीन के अंदर। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन डिवीजन होगा, मियोसिस होगा। तो अब ये एक कितनी हो जाएगी, आधी हो गई, हैप्लोइड कितना 16। अब ये 16 जो एक बनी है ये अकेले है और यदि अकेले ही फिर इस क्वीन से एक बना तो ये हैप्लोइड मेल हुआ और ये जो हैप्लोइड मेल है दिस इज योर मेल है, दिस इज द ड्रोन, राइट। तो ये ड्रोन की तरह काम कर रहा है। अब मान लो इसी में मैंने कहा नहीं कोई एक बनी, ये देखो मान लो ये एग है, फीमेल एग है, राइट। ये तो आपने उसी से डायरेक्ट बना दिया, फीमेल से फीमेल बन के चलेगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से जो ये फीमेल है इसने एग बनाया, एग यदि बिना फर्टिलाइज किए बना दिया तो ये हो सकता है हैप्लोइड बॉडी बने। जबकि ऐसा भी हो सकता है जो इसका मेल है, अभी मैंने बताया ना मेल भी हैप्लोइड होते हैं, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 16 ही रहेगा। अब इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा। देखो वहाँ भी मैंने बात कर रहा था प्लांट के लिए दिया था, एनिमल में भी दोनों केस आ गया। आप एनिमल में भी बोल सकते हो कि हनी में भी गैमेट्स बनाने के लिए क्या चाहिए, यहाँ माइटोसिस हो रहा है और एक तरफ क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। तो ड्रोन्स जो मेल है उसमें माइटोसिस और जो फीमेल क्वीन है उसमें मियासिस हो रहा है। फाइनली दोनों फर्टिलाइज कर रहे हैं और क्या बना, फिर से ये डिप्लॉयड बॉडी बनी, दिस इज 32, ये डिप्लॉयड फीमेल हो गई। तो अब कैसे होता है, अब देखो। सो दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोजेनेसिस हनी बी। यहाँ पर क्या हुआ, मेल, ये देखो मेल बी है, माइटोसिस करा, स्पर्म बना। यहाँ क्वीन है, मियोसिस हुई है इसके अंदर, एग बनी। एग यदि फर्टिलाइजेशन नहीं किया, ऐसा ही रह गया तो फिर से ड्रोन बन गया। ड्रोन मैंने बताया मेल होता है। अब मैंने बताया इसके अंदर एक आया आपका क्वीन का फीमेल, ये क्वीन का एग आया और इधर यदि मैं बोल रहा हूँ मेल है ड्रोन है, ये दोनों आके फर्टिलाइज कर रहे हैं, एन 2n हुए। अब यहाँ देखो ये जो 2n बॉडी है यहाँ 2 केसेस होगा, या तो वो रॉयल जेली से घिर जाएगा और रॉयल जेली से घिर गया देन दिस इज कॉल्ड क्वीन। लेकिन यदि रॉयल जेली से नहीं घिरा देन दिस हनी बी इज कॉल्ड वर्कर। तो याद रखना है जो वर्कर होती है वो 2n तो होती है, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये स्टेराइल होती है। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि इसका मतलब जो क्वीन है ये भी 2n है, जो वर्कर है ये भी 2n है। अकेला ड्रोन क्या होता है, यही हैप्लोइड होता है, राइट। Is it clear? And this is a very good explanation of parthenogenesis, right? तो अभी हमने देखा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या है, जाइगोट का फॉर्मेशन के बाद की कहानी है, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहलाएगी। जाइगोट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, डिप्लॉयड बॉडी होती है
और यही डिफाइन करेगी कि बॉडी आगे कैसे ग्रो होगा। बॉडी हैप्लॉन्टिक होगी, डिप्लॉन्टिक होगी या हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगी, कैसी बॉडी हो सकती है। नाउ ऑर्गेनिज्म जो है और वो जाइगो एल्गी है, फंजाई है, इसकी जाइगोट जो होती है वो थिक वाल होती है और वो फाइनली रेस्टिंग स्टेज में जाती है, जर्मिनेट करके फिर बॉडी का निर्माण करती है। लेकिन एल्गी वाले केसेस में माइटोसिस होता नहीं है, मियोसिस होता है, इसीलिए एल्गी नॉन एम्ब्रियोफाइटा है, जबकि ब्रायोफाइटा वगैरह कैसे हैं, सभी एम्ब्रियोफाइटा है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन खूब आता है सर्सन एग्जाम में कि जाइगो कौन है, वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हमेशा क्वेश्चन बन के आता है। ये किसके लिए कहा गया, ये जाइगोट के लिए कहा गया, राइट। देखो अभी मैंने बताया कि भाई जाइगोट में यदि आपने मियोसिस करा दिया तो ये एल्गी की कहानी हो जाएगी और लाइफ साइकिल कैसा होगा, हैप्लॉन्टिक होगा। लेकिन जाइगोट में यदि आपने माइटोसिस किया है तो वो ग्रो करेगा और वो कहानी यदि शुरू हुई है हैप्लॉयड लाइफ साइकिल से तो वो ब्रायोफाइट्स की हो सकती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और डिप्लो हैप्लॉन्टिक भी लेंगे तो टेरिडोफाइटा हो सकता है। ये सारे एग्जांपल भी आपके आ सकते हैं 11 से लिंक करो नीट क्लास के लिए, तो नीट में क्वेश्चन आ सकते हैं कोरिलेट करके। जबकि यदि पूरी बॉडी डिप्लॉयड हुई है तो वहाँ पे भी मियोसिस होती है, जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहाँ होता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में होता है। क्लियर। तो एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होता है फ्रॉम दिस जाइगोट, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें एम्ब्रियो का सेल डिवीजन होगा, मैंने बताया माइटोसिस होगा, फिर सेल डिफ्रेंशिएट होकर डेवलप होगी न्यू बॉडी में। अब ये जो डेवलप होती है उसमें दो तरह के केसेस हो सकते हैं, या तो वो ओबीपेरस होगा या बीबीपेरस होगा। बीबीपेरस का मतलब ये वीवस माने लाइव, पेरी मीन्स बियर। यदि पूरी बॉडी डेवलप हो रही है, बॉडी फीमेल बॉडी से बाहर निकल रही है, दिस इज कॉल्ड बीबीपेरस। लेकिन एग से फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ओबीपेरस। यस, सो डेवलपमेंट ऑफ यंग जाइगोट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, ये बीबीपेरस हो गया। बीबीपेरस में आप देख रहे हैं जाइगोट डेवलप कर रहा है इनसाइड द बॉडी, यहाँ पे प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर होगा, पेरेंटल केयर होगी, जो मोस्ट मैमल्स में होती है। वेल मछली है लेकिन ये भी बीबीपेरस है। मैनग्रूव प्लांट्स याद होगा, राइजोफोरा, सोनेरेशिया, ये सारे मैनग्रूव प्लांट्स है, और बहुत सारे जो एक कॉमन लिजार्ड्स भी बीबीपेरस होता है। जबकि ओबीपेरस में क्या है, जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर जाइगोट का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और ये जाइगोट जैसे आप रेप्टाइल्स में ले लें, बर्ड्स में कोई ले लें, कोई क्या होता है, उसकी चारों तरफ एक लेयर बनती है, हार्ड लेयर होती है प्रोटेक्शन के लिए, एंड दिस इज द कैलकेरियस सेल होता है जो सेफ्टी प्रदान करता है बाहर के इन्वायरमेंटल कंडीशन से। और यहाँ पे लेकिन प्रॉपर केयर है, एम्ब्रियोनिक मदर पेरेंटल केयर नहीं होता। ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। कुछ ऐसे भी स्नेक्स हैं और कुछ फिशेज और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो ओवोविविपेरस कंडीशन कॉज करते हैं, राइट। क्वेश्चन आया था एनसीईआरटी में, कैन यू नेम अ प्लांट इन विच सेपल्स आर अटैच, सेपल अटैच होते हैं। तो सेपल जो होते हैं पढ़ेंगे आगे, कुछ सेपल ऐसे होते हैं जो फ्लावर में तुरंत गिर जाते हैं, कुछ फ्लावर के ग्रो करने के बाद डेवलप होते हैं, कुछ फ्लावर के साथ ही अटैच होते हैं। याद करो, आप बैंगन को देखते होगे, बैंगन का जब आप देखते हो, आप जो लेते हो वो फ्रूट है, और देखना ग्रीन कलर का साइड में निकला होता है, वो क्या सेपल है। तो अभी भी सेपल लिखा हुआ है, एंड दिस सेपल्स आर कॉल्ड परसिस्टेंट सेपल। ये कहाँ कहाँ मिलेगा, गुआवा में, ब्रिंजल में, टोमेटो, मतलब सोयनेसी है, बहुत कॉमन है सोयनेसी इसका एग्जाम्पल फॉर परसिस्टेंट सेपल्स, राइट। ये मैंने बताया कि आपका क्विज सेशन है, बताना है इसमें कौन आपका, यस ये तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया बीबीपेरस का, ओविपेरस का, और ये क्वेश्चन क्विज सेशन का आप करोगे। आज टाइम कम है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। श्योर पार्ट स्नैपशॉट लेके और इसको खींच के आप मुझे पोस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। सो दिस इज योर क्वेश्चन एंड HW होमवर्क दे रहा हूँ, टिक मार्क करके मुझे देना है आपको। नाउ सो दिस इज द लास्ट पार्ट, सीड एंड पेरिकार्प। यस, फ्लावरिंग प्लांट्स में जो जाइगोट है वो बंद हो जाएगा, कहाँ, ओव्यूल के अंदर। और यही ओव्यूल क्या बनाती है, सीड बनाती है, और सीड का जो प्रोटेक्टिव बाहरी लेयर है उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन जो होती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपर पेटल्स जो होते हैं विदर्ड, निकल जाएंगे, फॉल, गिर जाएंगे। तो देखो फ्लावर में मेन पार्ट्स क्या होता है, कैलिक्स, कैलिक्स माने सेपल, कोरोला, पेटल, एंडोइशियम, स्टैमेन गया काम से, केवल गाइनोसियम बच गई। गाइनोसियम के अंदर ओव्यूल सीड बनाएगा, ओवरी फ्रूट बनाएगा, और यही फ्रूट वॉल क्या कहलाता है, इसका पेरिकार्प कहलाता है, राइट ना।
तो पिस्टिल जो होती है वो जायगोट में आया, जायगोट आप देख रहे हो डेवलप किया एम्ब्रियो में, और फिर फाइनली सीड के अंतर्गत आ गया, और जो ओवरी है वो फ्रूट बनाती है, थिक वॉल्ड होती है, इसकी प्रोटेक्टिव को पेरिकार्प बोलते हैं, और फाइनली जो सीड है जर्मिनेट करती है अंडर द फेवरेबल कंडीशन और डेवलप होती है किस चीज़ में, न्यू प्लांट्स में। ये देखो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपने देखा होगा ये पी में बड़ा कॉमन है, जिस मार्जिनल प्लेसेंटेशन से निकला हुआ फ्रूट्स है। ये देखो ये एक्साइल प्लेसेंटेशन से निकला हुआ है, एस फॉर सीड, पी फॉर पेरिकार्प। ये देखिए आपका, ये आपका पेराइटल प्लेसेंटेशन से बना हुआ है, पेराइटल कंडीशन है इसका। और ये देख रहे हैं सुपरफिशियल है ना, सुपरफिशियल, ये सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन से बना हुआ है, एंड दिस इज़ वेरी कॉमन राइट ना, इन क्विकर बीट्स में कॉमन है, ये आपका मस्टर्ड में कॉमन है, या ये क्विकर बीट्स में कॉमन है। दिस इज़ वेरी कॉमन इन सोयानेसी राइट, एंड दिस इज़ वेरी कॉमन इन लेग्यूम्स में कॉमन, जैसे मैंने बताया पी में होता है राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पी एंड सीड एंड पेरिकार्प। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। वी टुडे फिनिश दिस चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो ये चैप्टर बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जैसा मैंने पहले ही बताया था, इससे 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ये चैप्टर 11th और 12th क्लास के लिए एक ब्रिजिंग क्लास है, इंट्रोड्यूशन क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स देखेंगे राइट। सो इन अ नटसेल सीड और पेरिकार्प पढ़ा हमने, ओविपेरस बीविपेरस पढ़ा राइट, फिर इम्ब्रोजेनी पढ़ा, पैटर्न पढ़ा, फिर पार्थेनोजेनेसिस पढ़ी हमने, फर्टिलाइजेशंस के अलग अलग फॉर्म देखे, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखा, फर्टिलाइजेशंस के बाद हमने प्री फर्टिलाइजेशन कंडीशंस देखी राइट, सेक्सुअलिटी देखा, अलग अलग होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक की बात करी, होमोगैमेट्स हेटेरोगैमेट्स की बात करी, कैसे तीनों स्टेप में आया, एंड सीजनल ब्रीडर्स नॉन सीजनल ब्रीडर्स देखा, एंड फाइनली वी गो थ्रू द वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन राइट ना। एंड उसके पहले हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा था राइट, कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग होते हैं, लाइफ स्पेंस के बारे में पढ़ा था, कैसे लिंक होती है। सो इस दिस वे इन 3 लेक्चर्स वी कंप्लीटेड। नेक्स्ट में वी विल डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। In next class, we will start your second chapter of class 12. Yes, that is sexual reproduction in flowering plant. Yes, वहाँ से 2 क्वेश्चन आपके कंफर्म हैं, कभी कभी 3 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, डिटेल करूँगा किस साल कितने क्वेश्चंस आए हैं उसके। इज इट क्लियर? सो ओके, कीप वाचिंग। इसको आप देखें, पढ़ें, एनसीईआरटी जितना मैंने लिखाया है कॉपी बनाएं, नोट स्टार्ट करें, देन स्टडी और एनसीईआरटी, आपको लगेगा सारी चीज़ आपको याद हो गई है, एंड देन यू विल सॉल्व एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो इसको आप प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरों का भी भला हो सके राइट। सो थैंक यू वेरी मच। मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर।